नमस्कार नमस्कार, मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज यानी आरकेबी और मैं हूं इस वक्त एडवोकेट प्रदीप नामगियार जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। और प्रदीप जी और मैं कहां पर हैं? नेशन नाउ पर। नेशन नाउ हमेशा हमेशा आपके साथ और हमेशा ही आपके साथ रहेगा। आप सब लोगों को जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। And to all our viewers in China, ni hao. To all our viewers in Japan, konnichiwa, Pradeep ji. Abariako Jambo to viewers in East Africa, South Africa, the continent of Africa, wherever they speak Swahili. Wherever they speak Swahili, and that's a lot of people. Yes. That's a whole lot of people. और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए. Please do subscribe to the channel if you haven't subscribed already. The fastest growing channel of the nation, Nation Now. The fastest growing channel of the nation, Nation Now. Subscribe to that icon. Nation Now. तो प्रदीप जी, मोदी जी इज हियर टुमारो. मोदी जी मुंबई में हैं. बिल्कुल सर. एक्चुअली नवी मुंबई में, सबसे पहले नवी मुंबई में जो नया एयरपोर्ट बना है उसको ही इनॉग्रेटेड. और जहाँ तक मोदी जी का खुद का प्रश्न है, टुडे इज द 24th anniversary I think of Mr. Modi ji taking over as chief minister. 25 years, sir. 25 years. It was 2001. Yes, so yes. He is himself said it's 25 years. Yes. Yeah, 25 years. Yes. I think it's the 25th anniversary and 24 years because 2001 is when he became chief minister and we are in 2025, so that'll be 24 years if I'm not mistaken. And after that he'll be coming here next to us in BKC. Right, to inaugurate the new metro line. Bilkul sir. Fantastic. And also in the FinTech, this big huge seminar 3-day function going on there in BKC, Reliance Geo Center. Yes, so it's going to be one hell of a job to try and get to the office. Yes. So be careful, get here early, all of you who work in Dhirubhai BKC. Square. जितना जल्दी आप BKC में आ सकते हैं आ जाइए, वरना there will be a lot of security arrangements. The Prime Minister is coming over here, but I tell you what, the Prime Minister has I am really happy about this particular story. The Prime Minister has given complete freedom to the Indian Armed Forces, retaliate, hit back if the Pakistanis do anything stupid. अगर पाकिस्तान कुछ उल्टा सीधा करता है तो आपके पास खुली छूट है. डोंट शो एनी रेस्ट्रेंट एट ऑल. आप हिट कर सकते हैं जहां चाहे वहां पर. दैट्स व्हाट द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस हैव बीन टोल्ड एंड दिस इज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर इन हिस्ट्री हु सेड इट. Air Chief Marshal, he has said that entire Pakistan is our target. We first time went 300 kilometers inside Pakistan, hit our targets and came back. Yes. That's what the Air Chief Marshal said. And the only people who are very unhappy about it are the Wire, Mr. Praveen Soni, Miss Christine Fair, and people like that. बहुत दुखी हैं सब. Especially क्या नाम है उनका? वो प्रवीण सोनी साहब जो हैं, जो हमेशा पाकिस्तान की जो है बड़ी तारीफ करते रहते हैं. सिद्धार्थ वदराजन जो हैं, वो बहुत नाखुश हैं, बहुत दुखी. And General Dwivedi कहा कि the next time you have some misadventure, we'll knock you out of the map of the world. यानी इतने प्रोएक्टिव स्टेटमेंट कोई इस देश के जनरल कभी नहीं दिया था जी. कभी इस तरह का स्टेटमेंट हमारे कोई भी आर्म फोर्सेस के जनरल या एयर चीफ मार्शल नहीं कहा कि we'll wipe you out of the map. उन्होंने ये कहा कि साहब you will cease to exist civilizationally and geographically. Yes. मतलब ज्योग्राफिया का जहाँ तक सवाल है, भूगोल का जहाँ तक सवाल है, पॉलिटिकल ज्योग्राफी का जहाँ तक सवाल है, आपका वर्ल्ड मैप में से पाकिस्तान गायब हो जाएगा. यानी क्लियर कट एंड दैट इज रैटल पाकिस्तान नो एंड. बोले कि यू आर गोइंग टू क्रिएट सम मिसएडवेंचर एंड यू विल कम एंड अटैक अस सेइंग दैट वी हैव डन इट. तो ही सेज दिस इज अ डिजाइन ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड द एंटायर आर्म फोर्स. और बड़ी ताज्जुब की बात है प्रदीप जी, आप कोई डिजाइन करेंगे कुछ टेरर अटैक और हमको अटैक करेंगे. और बड़े ताज्जुब की बात है, उनकी जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, क्या नाम है उनका, ख्वाजा, जो भी नाम है उनका, yes. ख्वाजा आसिफ, वो बोलते हैं कि do you know Imran Khan's Twitter account is being handled from Delhi से. I thought Twitter had changed into X anyway. He can be excused for not knowing that. I didn't know that Imran Khan was such a favorite of the BJP government here. कि उनको अलाउ करेंगे, भाई आपका जो X account है हम लोग यहाँ से हैंडल करेंगे. I don't think there is any such thing. In an event, that's what he said. That's what he said in an interview to Mehdi Hasan, that Imran Khan's Twitter account is being handled from Delhi. So I wonder where is Hafiz Saeed's account being handled from, and Maulana Masood Azhar's, and all those other fellows. God knows. I mean, what are these guys up to? You know, let's go straight across to our guests. I think we've got a wonderful panel.
Let's go to our guest. BNK, how are you? All fine, sir. Thank you. नमस्कार, BN कुमार साहब, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे बड़े पुराने साथी हैं. And also later on he changed profession, went to Genesis PR and became one of the most well-known PRs in the entire country. BNK, great to have you with us. And Sameer Bhagre sahab, lovely to have you with us. I keep seeing your X account, I keep seeing your Facebook, your Instagram. You're doing a wonderful job, sir. Absolutely fantastic. थैंक यू सर। And you came थोड़ा देर लगा आपको हमारे शो में वापस आने के लिए, बागरे साहब। Bhagre साहब बहुत busy ट्रैवल थे. ज्यादा था। Okay. Bhagre साहब बहुत busy थे. As you know, Bhagre साहब is also part of the GST Council. He's also part of so many other things and so on and so forth. Yes, yes. But Bhagre साहब, congratulations. First of all, congratulations, Bhagre साहब. Congratulations to you also, BNK. Once again, मुबारकबाद हमारे सारे दर्शकों को, जितने हिंदुस्तानी हैं उनको बहुत 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 मुबारकबाद. वो हिंदुस्तानी जो इस खबर से दुखी भी होंगे उनको भी मुबारकबाद. क्या है साहब? सर, last month's exports were about $69.13 billion. They are up from $43 billion. Trump साहब के टैरिफ के बाद our exports have jumped up by $20 billion. Actually $26 billion. ये क्या है सर? ये क्या हो रहा है? Number 1. Number 2, as I said yesterday, our Vinay Ambekar साहब was with us. As I pointed out, Indian foreign exchange reserves have gone up to $700 billion plus. $700 billion plus, sir. मतलब I think Mr. Trump may have done us a big favor. वो क्या हुआ है कि स्पेशली टेक्सटाइल्स को लेकर के जो एक बहुत बड़ी चिंता का विषय था कि टेक्सटाइल्स को लेकर के बहुत लोगों की नौकरियां वगैरह जाएंगी. All those have been diverted to Holland. हॉलैंड ने खरीदना शुरू कर दिया है, नॉर्वे ने खरीदा है, फिनलैंड ने खरीदा है, एंड ऑफ कोर्स चाइना. एंड now the Russian delegation was here recently and they worked out a deal whereby they say we will absorb 50% of all the products that were going to the USA. So Bhagre sahab, congratulations. Wonderful job, great job from everybody, I think. Dr. Dhone, thank you very much for joining us, sir. Thank you, sir. Dr. Dhone. Namaskar, sir. Namaskar. Sameer Bhagre साहब, इस विषय के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे सर आप? Please go ahead, sir. देखिए राजीव जी, ये तो पहले दिन से भारतीय जनता पार्टी और मोदी साहब की सरकार क्लियर थी. हम लोग जो अमेरिकन टैरिफ्स है उसका मुकाबला करने के लिए तैयार थे. और दूसरा ऐसा है कि अगर अमेरिकन टैरिफ लगा रहे तो क्या अमेरिका सिर्फ दुनिया में एक देश थोड़ी है जहां पर भारतीय प्रोडक्ट्स की डिमांड है. ये तो पूरा यूरोप है, अफ्रीका है, इधर कनाडा है, हर जगह भारतीय प्रोडक्ट्स की डिमांड है. और पहले भी हमारे कॉमर्स मिनिस्टर ने और आदरणीय मोदी साहब ने कहा है कि अमेरिका इज अ फ्रेंडली कंट्री बट वी वांट द ट्रेड डील टू बी ऑन आवर टर्म्स. वी डोंट वांट टू कॉम्प्रोमाइज आवर फार्मर्स इंटरेस्ट, फिशरमैन्स इंटरेस्ट और डेयरी प्रोड्यूसर्स इंटरेस्ट. सो on these lines only we have been consistent. Mr. Trump has been changing his stand now and then, but still Mr. Modi has not reacted and Mr. Modi has kept his balance as should be kept by the leader of such a important and the largest democracy of the world. So हम लोगों ने एकदम क्लियर स्टैंड रखा है, पहले दिन से रखा है कि we will protect the interest of small farmers, dairymen, SME units. और हम लोग अलग देखिए सर, कैसा होता है when there is an प्रॉब्लम आता है तो आदमी अपॉर्चुनिटी भी ढूंढता है. And Mr. Modi is known for that. Whenever there is a problem, he creates something new opportunity and he creates a new dimension to that problem. So now you can see that Indians are being welcomed as exporters. It's not only in Russia, China is also taking a lot of efforts so that Indian products reach there. European market is already there. So the world economy is responding to India's mature democracy. The world economy is responding to India's basically a stable government and stable economic policies. So आज वर्ल्ड का मैन्युफैक्चरिंग सेटअप यहाँ शिफ्ट हो रहा है. आपने और हमने कई बार डिस्कस किया कि एप्पल का आईफोन का मैन्युफैक्चरिंग पूरा यहाँ हो रहा है. देयर आर ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स हैपनिंग. आज जैसे एक महाराष्ट्र जैसा स्टेट है सर, आप उनका ही टोटल लगा लो, फॉरेन का जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रहा है या जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन कैपेसिटीज एनहांस हो रही है, विदर्भ में जो डेवलपमेंट हो रहा है, तो इट इज अ इंडिकेशन ऑफ द थिंग्स टू कम. और हम लोग तो पहले ही भी बोले कि 11 से हमने चौथे पे अर्थव्यवस्था पे आए ना, वी आर गोइंग टू बिकम अ थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी एंड हमारा जर्नी टुवर्ड्स विकसित भारत इज ट्रूली ऑन एंड वी विल सी टू इट दैट एवरी इंडियन इज बेनिफिटेड. आज जो एक कोई अपोजिशन पार्टी वाले बोलेंगे कि हाँ जीडीपी तो आपका इतना है,
अरे भाई जीडीपी ग्रोथ तो हर साल हो रही है, जीडीपी ग्रोथ पर हेड 2014 से आज डबल हो चुकी है। तो अवर टारगेट इज दैट एवरी पर्सन इन द सोसाइटी, लास्ट पर्सन इन द सोसाइटी शुड गेट बेनिफिट। हमारे दीनदयाल उपाध्याय जी का वही है, एकात्मता मानववाद जो जी। उनका कंसेप्ट है, इंटीग्रल ह्यूमनिज्म। सो लास्ट मैन इन द क्यू शुड बाकरे साहब। गेट बेनिफिट, दैट इज आवर इंटेंशन। बाकरे साहब, अल्टीमेटली फडणवीस साहब ने अनाउंस किया फ्लड पैकेज फार्मर्स के लिए, 31,628 करोड़ फार्मर्स के लिए दिया, फार्मर्स का अलॉटमेंट, और अलग अलग चीज बोले कि जिसका सॉइल डिस्ट्रॉय हो गया उनको 3.5 लाख देंगे अलग अलग। बट द ऑपोजिशन इज स्टिल नॉट हैप्पी। ऑपोजिशन कह रहा फार्मर लोन वेवर किधर है, आप क्यों नहीं करे फार्मर लोन वेवर, ये चुनाव का जुमला। हाउ डू यू सी दैट? ऑपोजिशन स्टिल नॉट हैप्पी अबाउट इट। यू थिंक द फार्मर्स विल बी हैप्पी? देखिए प्रदीप जी, आपको मैं क्लियरली बताऊंगा कि अपोजिशन इज बैंकरप्ट ऑफ आइडियाज। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। अभी मुझे बताइए कि फार्मर ने जो लोन लिया है वो तो ऑलरेडी ले चुके हैं, उन्होंने पैसा लगा दिया है। आज अगर वो फार्मर लोन वेव करते तो क्या फार्मर के हाथ में पैसा आता था? तो आज जो फार्मर का जो घर डिस्ट्रॉय हुआ है, उसका खेत डिस्ट्रॉय हुआ है, उसके पशु डिस्ट्रॉय हुए, उसकी उपजीविका अफेक्ट हो रही है, तो उसको तो डायरेक्ट बेनिफिट उनको पैसा देना चाहिए। तो जो देवेंद्र जी इतने सेंसिटिव व्यक्ति है और उन्होंने पूरा स्टडी करके पैकेज बनाया। इफ यू आर सीन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस, उन्होंने एक एक चीज को एड्रेस किया है। उन्होंने ये भी कहा है कि एनडीआरएफ के जो नॉर्म्स है हमने उसके ऊपर जाके किया है। एंड 32,000 crores इज अ वेरी वेरी बिग पैकेज। आई अंडरस्टैंड दैट दिस इज अ वेरी बिग डिजास्टर विच हैज हैपेंड इन महाराष्ट्र इन द टर्म्स ऑफ जो रेन्स हुए हैं। ऑलमोस्ट 68 लाख हेक्टर्स का अपना अफेक्ट हुआ है। But I must say Devendra ji has given a package which is thoughtful and which directly addresses the concern of the farmers। क्योंकि आज सर उनके घर उद्ध्वस्त हुए हैं, कहीं कहीं तो पूरी खेती की पूरी मिट्टी निकल गई है। आज आपने सुना होगा कि जहां पर जमीन निकल गई है उसके लिए उन्होंने 3.5 लाख की प्रोविजन किया है। तो आज पहले तो हमारा एक इंटेंशन है कि किसान वापस खड़ा हो जाए। हम किसान के दुख में शामिल है, हम उसको हर तरह से मदद करेंगे। और ये कोई एंड ऑफ द पैकेज नहीं है। अगर हमको लगेगा कि, और देवेंद्र जी ने बार बार बोला है कि कर्ज माफी एक ही बार होती है, तो वी विल डू इट एट अप्रोप्रिएट टाइम व्हेन द फार्मर विल गेट मैक्सिमम बेनिफिटेड। आज जो उनका पर्पस था, या जो आज फार्मर्स की नीड इन डिस्ट्रेस है, उनकी नीड है डायरेक्ट उनको पैसे का सपोर्ट, उनकी नीड है डायरेक्ट घर उनका रिपेयर होना चाहिए, उनकी नीड है डायरेक्ट उनके पशु और क्रॉप का जो पैसा गया है वो उनके खाते में आना चाहिए। सो आई थिंक इट्स अ वेरी थॉटफुल and well intended and well organized package given by Devendra ji. And Navi Mumbai Airport being inaugurated tomorrow, sir, and also our new metro line right from here from BKC. And of course, apart from that, Mr. Modi will be addressing the FinTech conference, which is going on at the moment at the Geo Center tomorrow. So, which is why we told everybody that anybody who has offices in BKC, please come over here early, because afternoon ke baad the security protocols will take effect. However, great that this is happening. Let me go across to Dr. Dhone. Dr. Dhone, namaskar, sir. Dr. Dhone, are you happy, sir? हाँ। जो किसानों के लिए पैकेज अनाउंस किया गया है, क्या आप उससे खुश हैं? बोलिए सर। सर, जिस हद तक किसानों का नुकसान हुआ है उस हद तक मदद नहीं की गई है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने भी अभी बोला है कि भाई ये जो मदद दी है वो कम है, जितना नुकसान हुआ उतना होना चाहिए। और एक बात बोलूँ सर, किसानों का ऐसा है, किसान खेती करते हैं तो ये आम जनता पे उनके उपकार हैं, क्योंकि वो कोई गारंटी नहीं रहती कि वो कुछ खेती करेंगे तो उगेगा कि नहीं उगेगा, कोई गारंटी नहीं रहती। सब ऊपर वाले पे रहता है, सब नेचर पे, निसर्ग पे डिपेंड रहता है। और अगर आम किसान खेती करता है तो अपने को खाने को जो अनाज सस्ते में मिल जाता है। जिस दिन किसान खेती करना बंद करेगा और बड़े बड़े उद्योगपतियों के हाथ में खेती आ जाएंगी, उस दिन आप जाके देखिए मॉल में क्या रेट चल रहा है। अभी मॉल में जो अपन रोजाना जो चीज़ें खाते हैं वो उसके रेट क्या है उसमें जी। वो प्लास्टिक में पैक करके देते हैं, अच्छा अट्रैक्टिव पैक रहता है और उसके रेट कितने बढ़ जाते हैं। वो जो गोबर है ना, गोबर का जो बनाते हैं बाद में तो सूखने के बाद वो भी मिलता है मॉल में, उसकी भी रेट देख लीजिए क्या है। तो किसान जो है अन्नदाता है इस देश का, किसान को पूरी मदद मिलनी चाहिए। जो उसका जितना नुकसान हुआ वो मिलना चाहिए, तो उतना हुआ नहीं है। सर आपको बता दूं, आज तूर दाल का जो रेट है बॉम्बे में, मुंबई में, जो प्रीमियम क्वालिटी की तूर दाल है,
हर महाराष्ट्रियन कुकिंग में हर जगह पे तूर दाल इस्तेमाल होती है सर, आपको भी मालूम है। आज की तारीख में जो प्रीमियम दाल है जिसमें पत्थर वत्थर नहीं होते सर, बाकी सब में तो पत्थर वगैरह होते हैं ना, वो भी खाओ, अपने आप चुनो। 170 रुपए सर, 170 रुपीज पर किलो। मैंने कहा आपको बता दूं, नहीं वो ठीक है। इट रेंजेस फ्रॉम 107 टू 170। मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूं कि आपके टाइम पर जब आपकी सरकार पावर में थी तब 100 रुपए हो गई थी, 105 रुपए हो गई थी तूर की दाल। आपके नाक में दम कर दिया था बीजेपी ने, हर जगह पर ऐसी डेमोन्स्ट्रेशन करी थी, सब लोग सड़क पे आ गए थे। और आप जो हैं मतलब क्या कर रहे हैं मुझे मालूम नहीं है। अच्छा आप बोलिए सर, अब आप प्लीज गो अहेड। नहीं ये तो है सर, 100 जो आप बोल रहे हैं 170 रुपए हुई, लेकिन उसका जो लाभ जो किसानों को मिलना चाहिए किसान को नहीं किसान- मिलता, नहीं मिलता, नहीं मिलता है, नहीं मिलता वो व्यापारी को मिलता है। जी। ये व्यापारी की पार्टी है ना भारतीय जनता पार्टी, वो तो व्यापारियों की कदर करेंगी, लेकिन ये तो आम जनता तक हम पहुंचाने में असफल रहे कि ये व्यापारियों की पार्टी है। जो पुराने जमाने में कहा जाता है सेठ जी और भट्ट जी की पार्टी है, तो ये तो हकीकत है, वो तो दिख रहा है सर, अभी तो आंखों से दिख रहा है। उस वक्त तो लोग बोलते थे क्योंकि इनके पार्टी में तब सेठ जी और भट्ट जी दो ही लोग रहते थे, लेकिन अभी तो दिख रहा है कि ये इनके राज में क्या चल रहा है, ये कैसे अपने दोस्तों को, व्यापारी दोस्तों को मदद करे। व्यापारी यानी उद्योगपति बड़े 2-4 लोग 5 लोग इनको मदद करते हैं, आम व्यापारियों को तो कोई मदद नहीं है इनकी। बट दोनों साहब, एयरपोर्ट का इनॉग्रेशन, जो नवी मुंबई एयरपोर्ट का इनॉग्रेशन कल हो रहा है मोदी साहब के हाथों, 2 लाख नौकरियां, 2 लाख जॉब्स, 20 मिलियन विजिटर्स यानी ट्रैवलर्स को एकोमोडेट करेंगे, सर्विस करेंगे एयरपोर्ट। उसके साइड जितने भी सर्कुलर डेवलपमेंट होगा वो अलग। तो डेवलपमेंट का रफ्तार पूरा देश में दिख रहा है, महाराष्ट्र में स्पेशली। और फिर यहां पर आके मेट्रो लाइंस के ने, यहां पर टोटल 14 मेट्रो लाइन सिर्फ मुंबई में है। ये डेवलपमेंट इस प्रकार से, इस रफ्तार से हो रहा है, जॉब्स क्रिएट हो रहा है, और आप पॉलिटिसाइज कर रहे हो। आप कास्ट बेस्ड आप कह रहे हैं कि इस कास्ट को नहीं मिला, उस कास्ट को नहीं मिला, आप रिलीजन के पॉलिटिक्स कर रहे हो, आरोप पे आरोप आपका चालू है दोनों साहब। सर ऐसा है, आप मुंबई में बैठ के बात कर रहे हैं सर, जरा आप आइए, जरा ग्रामीण क्षेत्र में आके देखिए क्या हालत है। आप जरा खेड़ोपाड़ी में आइए आप कभी हमारे अकोला में गजानन महाराज के दर्शन भी कीजिए, शेगांव में हम आपको लेके चलते हैं क्या स्थिति है ग्रामीण क्षेत्र की, आपको पता चल जाएगा। तो ऐसा नहीं है ये जो चकाचौंध दिख रही ये मुंबई दिल्ली तक है, बाकी कुछ नहीं है। एयरपोर्ट तो अदानी के पास दिया है नवी मुंबई का, वहाँ से बहुत सारा कोकीन ये वो ड्रग्स वगैरह सब बरामद हो रहा, बार बार न्यूज़ आते रहते हैं। मुझे तो लगता है एयरपोर्ट के आड़ में वही दूसरा ही धंधा चल रहा है इनका, यही है, दूसरा कुछ नहीं। हर बार क्यों आता है, और वो मुंद्रा पोर्ट से आता है, हमेशा गुजरात से आता है, क्या है ये हमेशा। दोनों साहब, समृद्धि महामार्ग में पूरे जितने किसान हैं वो पूरे समृद्ध हो गए। ये एक आंकड़ा है, सब हो गए समृद्ध, जबरदस्त इनकम उनका हो गया। और जो भी समृद्ध महामार्ग भी समृद्धि हो गया, और लोग वहां के जितने लोग अगल बगल में उस मार्ग के रहने वाले, उन सब के इनकम जो अनबिलीवेबल इस प्रकार से बढ़े हैं। तो जहां डेवलपमेंट है वहां हुआ है दोनों साहब। नहीं क्यों हुआ इनका। 2013 का कानून है भूमि अधिग्रहण कानून, कांग्रेस सरकार ने बनाया था 2013 का भूमि अधिग्रहण कानून। उसमें था कि मार्केट रेट से, जो मार्केट रेट चल रहा है, गवर्नमेंट रेट नहीं, मार्केट रेट के 5 गुना उनको दाम मिलना चाहिए। ये कांग्रेस के सरकार ने दिया है। लेकिन डॉक्टर ढोने, आपसे एक छोटी सी बात मैं सामने रखता हूँ। हाँ, कोई प्राइवेट पोर्ट भी होता है ना, जैसे आपने मुंद्रा पोर्ट की बात करी, अभी दिघी पोर्ट भी है, मुंद्रा पोर्ट भी है, बाकी अलग अलग पोर्ट्स हैं, और उसके अलावा जो भी एयरपोर्ट होता है, एयरपोर्ट की जो ग्राउंड सर्विसेज वगैरह हैं वो दे आर मैनेज बाय दी प्राइवेट कंसर्न सर। कस्टम्स, चेकिंग, security, everything is in the hands of the government, and that goes also for all the ports. तो आप अगर ये बोल रहे हैं जो आपने अभी बोला, that I think is not a responsible statement sir, कि इस एयरपोर्ट की आड़ में चरस, गांजा, ये कोकेन वोकेन सब आएगा सर, that is not right सर। हमेशा न्यूज़ सुनते आ रहे हैं सर। मजाक कर रहे हैं आप सर। मुंद्रा पोर्ट पे 20,000 पकड़ी गई, which was around I think worth around कितना 2,000 crores और कितना 20,000 करोड़ की थी, सॉरी, पकड़ी गई। आई एग्री विद यू, पकड़ी गई, लेकिन पकड़ी गई ना, दे कुड नॉट ब्रिंग इट इन। पकड़ी गई ना, किसने पकड़ी? कस्टम्स ने पकड़ी ना सर। इसकी हिम्मत कैसी है सर? सर हिम्मत की क्या बात कर रहे हैं? आज की तारीख में मुंबई में हमारे ऑफिस के बाहर निकलिए सर,
जब से आप सब लोगों ने मिलकर के समीर वानखेड़े जी की आप लोगों ने ट्रांसफर करा दी यहाँ से, तब से आपके जितने ड्रग डीलर हैं सब बाहर हैं, सब इधर से उधर सामने सबके सामने बेच रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं सर, हर जगह पे ऐसा है। सो टू ब्लेम आइदर यू आर जोकिंग देन इट्स फाइन, लेकिन अगर आप सीरियसली बोल रहे हैं सर दैट इज नॉट राइट। गौतम अडानी के खिलाफ अगर आपके पास कुछ है तो कोर्ट में जाइए, ऐसी क्या बात है? क्या वाई जस्ट इंडिया? यू कैन गो एनीवेयर इन द वर्ल्ड अगेंस्ट हिम। और सबसे ज्यादा बढ़ावा गौतम अडानी जी को तो आपने दिया है, आपकी सरकारों ने दिया है। नहीं सर, राजस्थान में जब आपकी सरकार थी, आज तेलंगाना में जो आपकी सरकार है, कर्नाटक में जो आपकी सरकार है, हिमाचल में जो आपकी सरकार है, मिलू के 1,25,000 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट्स आपने गौतम अडानी को दिए हैं, आपने दिए हैं सर। ठीक है सर, हमारी सरकार ने उनको दिए होंगे कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन 1 रुपया प्रति एकड़ के हिसाब से जमीन नहीं दिए सर हमने। 1 रुपया प्रति एकड़ ये किसने दिया है? ये कांग्रेस ने नहीं दिया है, उनको कॉन्ट्रैक्ट दिए होंगे। उन्होंने टेंडर निकाला, टेंडर में इन्होंने बोली लगाई, ये कॉन्ट्रैक्ट उनको दिया, वो ठीक है। लेकिन सरकार की तरफ से पूरे नियम बाह्य सुविधा, आप वो भागलपुर की जमीन की बात कर रहे हैं, आप भागलपुर की बात कर रहे हैं ना? हाँ वही। हाँ, तो उसके खिलाफ तो आपको कोर्ट जाना चाहिए। वहां तो सर आम के बाग इतने बड़े हैं, वहां पे 10 लाख पेड़ हैं आम के, वो सब काटे जाएंगे अनलेस समबडी स्टॉप्स हिम। लेट्स बी वेरी क्लियर, वो तो आपको करना पड़ेगा ना, वो तो आपको करना पड़ेगा, कुछ सिर्फ बोलने से क्या फायदा है? आप कोर्ट जाइए ना, रोकिए, देखिए व्हाट द कोर्ट से, ऐसी क्या बात है डोने साहब। बट वन थिंग इज देयर डोने साहब, आपको कंग्रेचुलेशन, आपको मुबारकबाद। बॉम्बे हाई कोर्ट ने मना कर दिया है जीआर जो निकला था मराठा आरक्षण के लिए, उसके ऊपर स्टे देने से। बॉम्बे हाई कोर्ट ने मना कर दिया। सो यू शुड बी वेरी हैप्पी, क्योंकि यू आर ऑलवेज इन फेवर। आप शुरू से आज तक वो जो कुंभी समाज है, आप उनके लिए उनके फेवर में ही थे हमेशा कि भाई इनको आरक्षण मिलना चाहिए, और जितने मराठा हैं एक्चुअली कुंभी हैं, ऐसा करके आप शुरू से बोलते आ रहे हैं। सो कंग्रेचुलेशंस टू यू। Let me go across to BNK. BNK, so you're getting a new airport in Navi Mumbai. You should be a very happy man. Yeah. So you won't have to travel all the way to Mumbai to take a flight. All you have to do is to get out of your house, walk to the airport and go. BNK साहब। ये एक्चुअली एयरपोर्ट प्रोजेक्ट जब से चल रहा था, उसको एक्चुअली there have been lot of environmental issues surrounding the airport. Yes. That not been attended as yet. अभी एक्चुअली आप देखोगे कल सिर्फ प्रधानमंत्री एयरपोर्ट में वॉक थ्रू करेंगे, एंड देन एक्चुअल फ्लाइट्स विल स्टार्ट ओनली इन दिसंबर। एंड इससे पहले सिरको एमडी का स्टेटमेंट आया था परसों, उन्होंने कहा था कि अबाउट सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इश्यूज वी कांट टेक द रिस्क, वी नीड टू नो वेट एंड सी हाउ दिस इज गोइंग टू स्पैनिंग आउट, बिकॉज उल्वे जैसे एरिया में वहाँ इनफैक्ट एयरपोर्ट के आसपास में एज पर द डीजीसीए रेगुलेशंस 10 किलोमीटर के रेडियस में वहाँ पर कोई भी कचरा नहीं होनी चाहिए, या कोई भी स्लॉटर नहीं होनी चाहिए एनिमल्स की, क्योंकि ये सारी चीज़ों से बड़े बर्ड्स की, काइट्स जैसे बड़े बर्ड्स की, ईगल जैसे बर्ड्स की अट्रैक्शन होता है, और दिस बर्ड्स कैन इंटरफेयर विद द फ्लाइट्स। अगर बर्ड स्ट्राइक एक हुआ फ्लाइट को, आपको मालूम है तुरंत एयरक्राफ्ट को एयरपोर्ट में आना पड़ता है, या तो काफ़ी सारे यहाँ पर दुर्घटना भी हो सकती है। इस चीज़ को लेकर हम लोगों ने आपत्ति उठाई, आवाज़ उठाई, प्रधानमंत्री तक भी लिखा हम लोगों ने, और प्रधानमंत्री ने डीजीसीए को, एयरपोर्ट अथॉरिटी को हमारे पत्र को फॉरवर्ड किया। डीजीसीए से फाइनल रिप्लाई आया था कि वी हैव टोल्ड दी एनएमआईए, नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अभी ऑफ कोर्स उसका नाम तो चेंज हो जाएगा, डीबी पाटिल इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो जाएगा। तो वो एयरपोर्ट ऑफिसर्स को हमने कहा था कि इसके ऊपर ध्यान दीजिए, इसको चेक करो, और फिर भी चेक नहीं हुआ था। और उल्वे में खुल्लम खुल्ला आज के अभी भी क्लियर कट आप देख सकते हैं, वहाँ पर इसमें आम रूप में वहाँ पर एक पब्लिकली कत्ल हो रही है गोट्स की, और चिकन काटी जाती है, वो कार्कास जो है उसको बराबर डिस्पोज नहीं किया जाता है, और खुल्लम खुल्ला फुटपाथ के ऊपर नॉनवेज बेचते हैं। नॉनवेज खाने के ऊपर हमारी कोई आपत्ति नहीं है, आप खाइए, लेकिन आप भी जरा देखिए ना हाइजीनिक तरीके से वो नॉनवेज आपको मिल रहा है। But isn't that banned already? महाराष्ट्र सरकार का तो ये कानून है यार, बीएनके साहब, it is the law, you can't do that. नहीं, और दूसरी बात है बजाज जी, महाराष्ट्र सरकार ने एक कमेटी की अपॉइंटमेंट करी थी, वो कमेटी का नाम है एरोड्रोम एनवायरनमेंट मैनेजमेंट कमेटी, AEMC, जिसकी अध्यक्षता सिरको के अंदर है, और सिरको खुद वहाँ का लोकल प्लानर है। इसलिए हम गवर्नमेंट से कहते हैं, फडणवीस साहब को हमने लिखा था कि सिरको को ये जवाबदारी मत दीजिए, दिस शुड बी इंडिपेंडेंट मॉनिटरिंग एजेंसी, नॉट सिरको हिमसेल्फ। अगर मैं चोर हूँ, मैं
कुछ गलत काम कर रहा हूँ और मुझे आप कहते हो आप सुपरवाइज करो, दैट्स नॉट डन, देयर हैज टू बी इंडिपेंडेंट मॉनिटरिंग अथॉरिटी। But BNK नेग्लिजेंस की साहब, वजह से आज के तारीख में नाम की मात्रा में एयरपोर्ट लाइसेंस देने से पहले उन लोगों ने हटवा दिया था। हमारे एक लोकल नेता वहां पर एनसीपी के लोकल नेता है मिस्टर संतोष काटे, ही वेंट ऑन अ हंगर स्ट्राइक फॉर 5 days, ही हैड टू बी हॉस्पिटलाइज्ड। उस टाइम उनके सामने से जितने भी ये स्टॉल से उनको हटा दी गई। They are back now in big business. but that's a big risk, isn't Even it? now. BNK साहब, that's a very big risk. मतलब It for is- the airport, it is like terrible. How can you have open meat shops around the airport here? How? Yeah. I am shocked at this. This is shocking. और BN रेडियस, कुमार जी। अब रेडियस मैंने गिनी थी जी। एग्जैक्टली, इट्स अबाउट 3 kilometers फ्रॉम द रनवे। 3 kilometers. बीएन कुमार जी, आपने कहा कि 2 लाख वेटलैंड्स आर इन डेंजर ऑल अक्रॉस महाराष्ट्र। आपने कहा कि पूरे वेटलैंड्स को तकलीफ है, बर्ड्स और जितने फ्लोरा फौना सबको तकलीफ है। एयरपोर्ट आने से 2 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है और साइक्लिक बिजनेस में पूरे नवी मुंबई विल बी अ वेरी कमर्शियल सेंटर, कमर्शियल हब होगा, धंधा क्रिएट होगा, बिजनेस क्रिएट होगा। वेटलैंड्स जरूरी है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के भी टॉप प्रायोरिटी है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, ग्रीन अर्थ, ही ऑलवेज कॉल्स प्रोटेक्शन ऑफ मदर अर्थ, मगर वो बैलेंस करके चल रहा है। मगर आपका आरोप है एनवायरमेंट है, एनवायरमेंट खराब होगा, तो क्या डेवलपमेंट नहीं होना चाहिए बीएन कुमार साहब? सबसे पहले ये 2 लाख का फिगर पता नहीं कहाँ से पैदा हो गया है, ऑफिशियली सरकारी तरफ से आती है फिगर घड़ी घड़ी। आज आप देखोगे प्रदीप और बजाज और बाकी पैनलिस्ट, मुंबई एयरपोर्ट में आज की तारीख में कितने लोग एम्प्लॉयड है? लेस देन 4000 पीपल। अभी मैं फिगर चेक कर रहा था, 3700 लोग एम्प्लॉयड है मुंबई एयरपोर्ट में। जी। तो उतने ही लगभग होंगे। ऑफ कोर्स डिपेंडेंट बिजनेसेस, बाकी सारे साइक्लिकल, वो सब हो जाएगा, बट दैट विल टेक टाइम। सबसे पहले तो आपके फ्लाइट जो है दे विल स्टार्ट स्टेप बाय स्टेप। अच्छा, ऐसा नहीं कि आज की तारीख में जितने फ्लाइट मुंबई में आ रहे हैं जहाँ पर हो रहे हैं, नवी मुंबई एयरपोर्ट विल बी ट्विन एयरपोर्ट टू मुंबई। Yes. दोनों साथ में चलेंगे, ऐसा नहीं कि मुंबई बंद होकर नवी मुंबई में पूरा बिजनेस आने वाला है। और एयर इंडिया ने भी बताया था कि आप लोगों को ये ऑप्शन दी जाएगी वेदर टू टेक फ्लाइट फॉर मुंबई और नवी मुंबई, लाइक इट हैपेंड इन गोवा। अब मोपा से लो या फिर डबुलम से लो, Yes. as per the flight schedule you can pick up your as per convenience, Yes. you can pick up your flight and travel by the flights। और जहां तक वेटलैंड का सवाल है, खुशी की बात यह है कि नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी जो है अंडर अडानी, दे हैव डिसाइडेड टू प्रोटेक्ट ऑल द वेटलैंड्स। उन्होंने क्लियर कट एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट स्टडीज करने के बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट को सबमिट किया था। जब उनका एनवायरमेंट परमिशन जो है इसको रिन्यू की गई थी, उसमें उन्होंने कहा था क्लियरली कि ये जो बर्ड्स का एरिया जो है उससे थोड़ा कंसर्न वाला इश्यू है। तो बीएनएसएस ने रिसर्च करके बताया कि ये बर्ड्स जहाँ पर ट्रैवल करते हैं, फ्लाई करते हैं विद इन द सिटी की वेटलैंड्स के ऊपर से, जैसे कि ठाणे क्रीक फ्लेमिंगो सेंचुरी हो गई, वहां से या उठ के नई मुंबई वेटलैंड्स में आते हैं, नई मुंबई में अलग अलग वेटलैंड्स में जाती हैं। उनका फ्लाइट का जो हाइट जो है वो बहुत कम है एज कम्पेयर टू द एयरक्राफ्ट टेक ऑफ हाइट, और उसकी वजह से उनको कोई तकलीफ नहीं, दे डोंट क्लैश, देयर पाथ डू नॉट क्लैश। लेकिन अभी ये इश्यू हमने जो उठाया है वो दैट इज अबाउट दी काइट्स एटसेट्रा। ये बर्ड जो है वो बिल्कुल But BNK haven't उनके ऊपर you- एक्शन लेना बहुत जरूरी है। But और hasn't बिल्कुल the इस चीज़ पर Adani- बहुत अनदेखी कर रही है, ये हमारे Hasn't आपत्ति the है। Adani group taken action on this? I think the Adani group will take action on this, because how can you have meat shops within 3 kilometers of the runway? If you have that, you're asking for disaster. ये एक्चुअली यू नो इट्स अ स्लाइटली एडमिनिस्ट्रेटिव इशू है, सरकार की तरफ से होनी चाहिए। सरकार यानी लोकल एडमिनिस्ट्रेटर व्हिच इज कलेक्ट, बिकॉज उलवे एरिया जो है ना अराउंड द एयरपोर्ट, दैट एरिया इज नॉट अंडर एनी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, इट इज स्टिल अंडर ग्राम पंचायत, एंड सिरको इज द प्लानर देयर। सिरको को लेनी चाहिए, और सिरको इज, और अभी I'm sure they will. में जो I am लेटेस्ट sure they will. इंफॉर्मेशन मिली है I am उनमें sure. बताया गया क्लियरली कि अडानी एयरपोर्ट हैज टेकन एक्शन, they have appointed an external agency to monitor, Yes. they have, but actually this is a law and order issue। और हाई कोर्ट ने एनिमल वेलफेयर एक्ट के तहत एक कमेटी की भी अपॉइंट करी थी। वो कमेटी का भी काम है उसके ऊपर देखरेख करना, मॉनिटर करना, और वो कमेटी का सदस्य है मिस्टर सूरज साहा। उन्होंने भी आके आवाज उठाई, उन्होंने भी पुलिस को लिखी थी भाई इसके ऊपर तुरंत एक्शन लो, बिकॉज इट इज अ वायलेशन ऑफ ऑल्सो एनिमल वेलफेयर एक्ट। Yes. आप दिन दहाड़े जहाँ चाहे वहाँ जानवर की कटाई नहीं कर सकते, नहीं कर सकते।
बीएन कुमार जी, एट द सेम टाइम आपने मोदी साहब का तारीफ की है, बहुत मुश्किल से दोनों साहब सुनने वाली बात है। कहा आपने जिस प्रकार से जीएसटी इंप्लीमेंट किया, जिस स्पीड से जीएसटी इंप्लीमेंट किया, जिस स्पीड से आपने रिबेट भी दिया, लोगों को राहत भी पहुंचाए, दिवाली गिफ्ट भी दिया, उसी स्पीड से आप एनवायरमेंट को प्रोटो एनवायरमेंटलिस्ट खास करके धोने साहब आप जैसे मोदी साहब का कभी तारीफ नहीं करते, मगर जीएसटी पे बीएन कुमार जी ने तारीफ किया कि इंप्लीमेंटेशन एंड गिविंग रिवॉर्ड्स प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज सुपर स्पीड कर दिया है। ये तारीफ किस प्रकार से बीएन कुमार साहब? ये तारीफ हमने की है, वो तारीफ को फिर कोट एंड कोट में लिखिएगा, क्योंकि जीएसटी लाने वाले कौन है, एनवायरमेंट उसके ऊपर उन्हें कंसेशन देने वाले, रिफॉर्म्स लाने वाले कौन है। हमने इसका किया कि वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। अगर चाहे मोदी चाहे, उन्होंने करके दिखाया। आफ्टर ऑल द प्रेशर, आफ्टर ही सीन एमएसएमई इंडस्ट्रीज को उसको बहुत ज्यादा फायदा नहीं हुआ, काफी सारे यूनिट्स बंद हो गई थी, लोगों को तकलीफ हो रही थी, और अभी आप कहते हो कि ये डिस्काउंट, इट्स लाइक अ टिपिकल बिजनेसमैन एटीट्यूड। आप पहले 100 रुपये दाम बढ़ा देते हो, बाद में बोलते हो 30% डिस्काउंट, 70 रुपये में बेच रहा हूँ। ये वाली सीने नहीं बाकर साहब खड़े बैठे बहुत उत्सुकता से जवाब देने के लिए। सीमित था कि स्पीड विथ व्हिच अगर चाहे, अगर मोदी चाहे ये कर सकते हैं। इसके लिए आप पर्यावरण का भी रक्षण उसी स्पीड से कीजिए। क्या बोल रहे हैं आप? मोदी साहब ने प्रायश्चित लिया है सर, प्रायश्चित लोगों को लूटने का प्रायश्चित लिया है। But I'll tell you what, once again we, sir, we बेशर्मी की हद पार हो गई। अरे दोनों साहब एटलीस्ट कांग्रेचुलेट, मोदी साहब को कांग्रेचुलेट तो करो ना। कांग्रेचुलेट करेंगे सर, क्योंकि सर आज लूटा है। 25th एनिवर्सरी है सर, 25th एनिवर्सरी ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पब्लिक सर्विस इन पब्लिक सर्विस। टुडे 7th October 2001 he took the oath of office as Chief Minister of Gujarat। तब से लेकर के आज तक या वो मुख्यमंत्री रहे या प्रधानमंत्री रहे, सो वी मस्ट कांग्रेचुलेट हिम। कांग्रेचुलेशन तो बनता है सर। नहीं सर, ऐसा है, वो तो ठीक है, कांग्रेचुलेशन देंगे, लेकिन गुजरात मॉडल जो देश भर बताया जाता है, विकास का गुजरात मॉडल, तो हमने देखा दूसरे देश के जब राष्ट्रपति प्रधानमंत्री आते हैं तो गुजरात की गरीबी छुपाने के लिए दीवार खड़ी की जाती है। यह है गुजरात मॉडल। राइट, आप जरा जाके देखिए सर गुजरात में क्या है। जी गुजरात जाता रहता हूं। और ये तो सब झांसे वाले लोग हैं सर, झांसा देते हैं, 2 करोड़ नौकरियां, 15 लाख खाते में, सब झांसे वाले। और फिर भी लोग उनको वोट देते हैं, लेकिन आप बोलते हैं वोट चोरी। सब ऐसा है। जीएसटी रिलीफ को भी आप आलोचना कर, बाकरे साहब उत्सुकता से उसका जवाब देंगे। अभी बीएन कुमार जी भी ने आलोचना किया, आपने भी धोले साहब आलोचना किया। इतना जबरदस्त रिलीफ मिला है लोगों को, दिवाली गिफ्ट, असल में दिवाली गिफ्ट था। अरे सर लूटा क्यों, वो क्यों नहीं बोल रहे आप? क्यों लूटने के बारे में क्यों नहीं बोल रहे आप? वो देंगे उन्होंने इतने सालों तक, 8 साल तक लूटा है, 2017 से लेके आज तक लूटने का काम किया है, उस बारे में बोलिए आप। राइट, सो लेट मी आस्क बागरे साहब, ये कहा जाता है जब भी आपने जीएसटी को रैशनलाइज किया, 2 रेट्स पे किया आपने, 5% एंड 18%, और उसके अलावा एज फार एज लग्जरी आइटम्स एंड अदर थिंग्स लाइक सिगरेट्स एक्सेट्रा कंसर्न, दे आर एट अबाउट 40%, ठीक है, चलता है वो। सर बार बार ये कहा जाता है कि 8 साल तक आपने लूटा है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ सर, मेरी एक छोटी सी बात आज सुन ले। 1962-63 में मुझे याद है इनकम टैक्स यूज्ड टू बी एट अबाउट 63% और 70%, आई रिमेंबर दैट। उसके बाद क्या था, आफ्टर अ सर्टेन लिमिट, आफ्टर यू हैड अर्न्ड ओवर 9 लाख रुपीज, इट यूज्ड टू गो टू 110%। तो क्या हम उसको लूट कहें कि आज की तारीख में जो इनकम टैक्स का स्लैब नीचे आ गया है, 10 लाख के 12 लाख तक जो इनकम टैक्स को छूट दे दी गई है, उसके पहले जो इनकम टैक्स किया, क्या वो लूट है? बागरे साहब, बीएनके में आपके पास आता हूं, पहले बागरे साहब की बात सुन लूं। जी बोलिए। सर 1 मिनट बोलिए सर, मैं आपको दुरुस्त करता हूँ। आप 12 लाख पे इनकम टैक्स छूट कैसे बोल रहे हैं सर? जी नहीं है 12 लाख के ऊपर छूट नहीं है। हमारे यहाँ टीचर है जिसको 75,000 पेमेंट मिलता है, उसकी 9 लाख रुपए साल की उसकी सैलरी होती है, उसको टीडीएस काटते हैं। सर टीडीएस सेपरेट लगता है सर, टीडीएस अलग है, इनकम टैक्स अलग है। नहीं ठीक है, इनकम टैक्स मिला। सर बाकरे साहब को बोलने दीजिए ना, अगर मैंने गलती करी है तो बोले सर, अगर मैंने गलती करी है तो सुधार कर दें, ऐसी बात है। जी समीर बाकरे साहब, आप बोले। देखिए, मैं डॉक्टर डोले साहब की मजबूरी समझ सकता हूँ। अगर कांग्रेस पार्टी में रहना है तो उनको राहुल गांधी की लाइन टॉप करना पड़ेगा। सो आई अंडरस्टैंड, ही इज अ वेरी इंटेलिजेंट मैन, बट ऑन टीवी ही हैज टू सपोर्ट मिस्टर राहुल गांधी। उनके जो आर्गुमेंट्स है सर, मैं जीएसटी के बारे में वापस एक क्लियर करना चाहता हूँ। जीएसटी 2017 में मोदी साहब ने हिम्मत करके लाया। 2000 से 2014 तक कांग्रेस पार्टी सोई थी। क्वेलकर कमेटी की रिपोर्ट 2000 की है।
आज देखिए, जब जीएसटी आया तब देश में करीब करीब 50 टैक्सेस ऐसे थे जिसको मर्ज करके जीएसटी लाया गया। और आप जो जीएसटी बोल रहे हैं ना सर, आज 28% का भी जो स्लैब था, वो अगर 28% आप अगर कंपेयर करेंगे जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, वो तो 43 और 54% का टैक्स था। वो टैक्स वैट के फॉर्म में था, वो टैक्स एंट्री टैक्स के फॉर्म में था, वो टैक्स अपट्रैक के फॉर्म में था, वो सेल्स टैक्स के साथ इसमें था, वो सर्विस टैक्स था, वो एक्साइज था। मैं कितनी आपको 50 टैक्सेस बता सकता हूँ। तो ये एक गलत धारणा फैलाना बंद करे कांग्रेस पार्टी। जीएसटी रैशनलाइज हुआ है। और दूसरा, ये बात कर रहे हैं लोगों को लूटने की। अरे किस तरीके की आप राजनीति करना चाहते हैं? ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है। जीएसटी काउंसिल में आपके भी सब अर्थ मंत्री बैठे हैं। और क्या जीएसटी का कलेक्शन सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को आया क्या? कांग्रेस पार्टी के जो भी शासित राज्य है सभी को मिला है। देयर इज अ फॉर्मूला। तो ऐसा कुछ भी, मतलब जनता को कुछ भी बहकाने के लिए करना। और एक देश की जब इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था बढ़ती है तब टैक्स कलेक्शन बढ़ता है। इतना बेसिक इकोनॉमिक्स कांग्रेस पार्टी को नहीं समझता। आज अगर 2017 में 7 लाख करोड़ का कलेक्शन है और आज 22 लाख करोड़ का है, तो 2014 में भाई साहब अर्थव्यवस्था 11वें नंबर पे थी, 2 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था थी, आज 4 ट्रिलियन की है। तो हमने टैक्स पेयर पे विश्वास किया। जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर था वो पूरा ऑर्गेनाइज सेक्टर में टैक्स दे रहा है। इनकम टैक्स का 1 रुपया ना बढ़ाते हुए 2014 से मैं आपको चैलेंज करता हूं, डॉक्टर डोने साहब, आप मुझे बताइए कि इनकम टैक्स कहां बढ़ा है? कॉर्पोरेट टैक्स कम हुआ है, पर्सनल इनकम टैक्स हर साल कम हुआ है। इसके बावजूद हमारे बजट का साइज 2014 में 15 लाख करोड़ था, जो आज 60 लाख करोड़ है। तो लेट अस एक्सेप्ट रियलिटीज। आपको कुछ भी अगर बोलना है विदाउट लॉजिक, विदाउट फैक्ट्स, तो आई कैन नॉट हेल्प यू। बट अगर आप फैक्ट्स के साथ, फिगर्स के साथ बोलेंगे, और जीएसटी में जो स्टेट जीएसटी है वो स्टेट के पास आता है। अगर आपकी 2.5 साल महाराष्ट्र में सरकार थी तो आपको भी टैक्स मिला हुआ है, उससे डेवलपमेंट हुई है। तो क्या कांग्रेस पार्टी के जैसे कोई देश को लूटा नहीं गया कि जो कलेक्शन आता था? कोई स्कैम्स नहीं हुए, कुछ भी नहीं हुआ। तो अगर जीएसटी कलेक्शन आया है, और उसके पहले राजीव जी, प्रदीप जी, आप पूरा 1 घंटे का डिबेट रखिए। आई कैन कम विद फैक्ट्स एंड फिगर्स। 54% टैक्स लगा करता था, वो बिल में डायरेक्ट नहीं दिखता था, इसका मतलब लगता नहीं था, ऐसा नहीं है। ये टैक्स से रैशनलाइजेशन हुए, उसके कारण या देश की इकोनॉमी को एक बढ़त मिली है। 30% ट्रांसपोर्ट में हमारे बिजनेस का टाइम जाता था। तो एक तो बात जीएसटी और कलेक्शन की होगी। दूसरा, मैं डोने साहब को सुन रहा था, उन्होंने बोला कि हमने 1 रुपया स्क्वायर फीट में नहीं दी थी। डोने साहब, आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं, 1993 में मुद्रा पोर्ट की जगह आपने 10 पैसे स्क्वायर मीटर से दी है। कितना? 10 पैसे स्क्वायर मीटर, यानी 400 रुपए एकड़ से दिए आपने। कांग्रेस पार्टी ने मिस्टर अडानी को दी है। तो आप अपने फैक्ट्स चेक कर लीजिए। दूसरी बात, लैंड एक्विजिशन आपने 2013 में आया, लेकिन उसके बाद जो 2014, 15, 16 में उसमें अमेंडमेंट्स हुए, उसके कारण ये पॉसिबल है सब जो आज एक्विजिशन हो रहा है और आज इतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बन रहे हैं। तो देखिए, आपने कुछ लाया 2013 में, आपने लाया, हम तो डिनाई नहीं कर रहे, लेकिन उसका इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन, उसका प्रॉपर जो चैनलाइजेशन है, वो आज भारतीय जनता पार्टी और मोदी साहब ने करके दिखाया। जो वहां पर अड़चने थी 2013 के एक्ट में, वो सब रिमूव कर दिए। सो इट इज अ कंटिन्यूइंग गवर्नमेंट। हम बिलीव करते हैं कि अगर कोई एक आधा कानून है, उसको अगर इम्प्रूव करना है तो हम करेंगे। आपने जो किसानों के हक में जो कानून आ रहा था, आज उस वक्त किसानों को अच्छी प्राइस मिलती थी, लेकिन आपने पंजाब के किसानों को और हरियाणा के किसानों को एक टूल किट और इकोसिस्टम ने बहका के एक आंदोलन खड़ा किया। अब उनको, फार्मर्स को ने तो आज अच्छे दाम मिलते थे। दूसरी बात है, डॉक्टर डोने साहब ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी भट्टी और शेठ जी की है जी। अरे भाई साहब, 235 सीट हमारी महायुति जीती है, 132 सीट हम जीते हैं। कांग्रेस पार्टी अभी नाम के लिए है। आपका जो कांग्रेस पार्टी का वोटर है, हम सबको पता है, मैं बोलता नहीं वो कौन है, उसके भरोसे आप चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी समाज के हर क्षेत्र में, धर्म के हर क्षेत्र में और महाराष्ट्र के हर क्षेत्र में जीत रही है। और ये कास्टिज्म आपके पूरे डीएनए में आ चुका है। आप इससे, डोने साहब, अगर बाहर नहीं निकले ना, तो आपकी जो सीटें है ना और कम होती जाएगी। और मैं मोदी साहब को आज कांग्रेचुलेट करता हूँ। 2001 में उन्होंने 25 साल आज कंप्लीट हो रहे हैं। 2001 आप देखिए, जब से मोदी साहब आए, कांग्रेस पार्टी की उल्टी गिनती शुरू हो गई। हर जगह उनकी सीटें कम होते जा रही है। आज बिहार में तेजस्वी यादव भी इनको कोई ये नहीं दे रहे, भाव नहीं दे रहे। दूसरा है कि आज कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी थी आजादी के बाद, अब ये बड़े बड़े स्टेट्स में कौन से नंबर पे आई? आप यूपी पे देखो, 4थे नंबर की पार्टी, बिहार में देखो 4थे नंबर की पार्टी, महाराष्ट्र में देखो 4थे नंबर की पार्टी, आंध्र प्रदेश में गायब, तेलंगाना में आज इनकी सरकार आई है, हरियाणा से ये। तो कैसे कांग्रेस पार्टी को विचार मंथन करना चाहिए। हर बार ब्लेम करना, हर बार निगेटिव एजेंडा चलाना, एक देश का पॉजिटिव जैसे एजेंडा नहीं है। जैसे देवेंद्र जी ने उद्धव ठाकरे साहब के भाषण के बारे में बोला था
कि अगर कोई मेरे को उद्धव ठाकरे साहब का जो दशहरे का भाषण है उसमें विकास का एक मुद्दा दिखा देंगे तो मैं उसको 1000 रुपए बख्शीश दूंगा, और उन्होंने बाद में बोला कि एक भी मुद्दा नहीं है। तो कैसा है राजीव जी, प्रदीप जी, जी। अपोजिशन पार्टीज हैव गॉन अवे फ्रॉम द पब्लिक But जो एजेंडा है बाकी उसके साहब- कारण, और एक सिर्फ पार्टी नहीं, ये परिवार को प्रोटेक्ट करते हैं। इनका बाकी प्रॉब्लम है, ढोने साहब का प्रॉब्लम है कि राहुल गांधी को हम कैसे गद्दी पे बिठाएं। हमारा इशू है हम जनता को कैसे फायदा करें। वो और नहीं आज है, बाकर साहब नहीं है। आज कांग्रेस ने आप पे इल्जाम किया आरएसएस एंड बीजेपी, बोले आरएसएस कैन नॉट मैच राहुल गांधी जो है ना इंटेलेक्चुअल जो फोरसाइट है उसको मैच नहीं पा रहा है, इसलिए पिंटू महादेव आपका स्पोक्स पर्सन ने बोला कि राहुल गांधी जी को हम गोली मार के चलनी। तो आरएसएस का यह आइडियोलॉजी है, जब आप विषय और आइडियोलॉजी पे फाइट नहीं कर सकते तो आप फिजिकल हो जाते। तो एग्जाम्पल लिया, गोडसे ने जिस प्रकार से महात्मा गांधी को मारा, आज आप वही राहुल गांधी के खिलाफ करना चाहते हो बिकॉज आप उनका आइडियोलॉजी मैच नहीं कर पाते। आरएसएस राहुल गांधी जी का आइडियोलॉजी मैच नहीं कर पा रहा है, दैट इज देयर एलिगेशंस। बाकरे साहब देखिए प्रदीप जी, संघ की आइडियोलॉजी राहुल गांधी से कभी मैच ही नहीं हो सकती। राहुल गांधी के जो फोर फादर्स है उन्होंने देश का पार्टीशन किया। हम संघ में अखंड भारत की बात करते हैं तो हमारी आइडियोलॉजी कभी मैच ही नहीं हो सकती, क्योंकि ये देश का विभाजन चाहते हैं। आज भी इनका एजेंडा देखिए, पहले हिंदू समाज को जात जात में बांटना है, फिर हिंदू और मुस्लिम का ये करना है। और अगर आप कोई प्रवक्ता ने कहा होगा तो आई कंडेम दैट, वी डोंट सपोर्ट, ना बीजेपी सपोर्ट करती है ना आरएसएस सपोर्ट करती है। लेकिन इनका जो अजहर मसूद जो था, जो इमरान मसूद, उन्होंने कहा था कि भैया मैं मोदी साहब के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, उसको तो इन्होंने पार्लियामेंट में भेजा है टिकट देके। तो देखिए राहुल गांधी का इंटेलिजेंस लेवल हम सब जानते हैं, आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन दैट। ही इज ट्राइंग टू कंपेयर कि एक टू व्हीलर क्या होता है, फोर व्हीलर क्या होता है, आलू से सोना क्या क्या बोलते रहते हैं, और रोज एक नया एजेंडा लेके आते आलू हैं। से सोना तो मोदी जी का है। अरे मेरा डोने साहब सुनिए ना, देखिए राहुल गांधी की अगर आइडियोलॉजी अच्छी रहती तो उन्होंने इतना लेफ्टिस्ट अपने आजू बाजू पाले नहीं रहते। जो कांग्रेस पार्टी सेंटर ऑफ राइट पार्टी हुआ करती थी आजादी के बाद, आज ये पूरी अल्ट्रा लेफ्ट पार्टी हो गई। इनका एजेंडा, इनके एडवाइजर्स कौन है? वो झोला छाप योगेंद्र यादव इनका एडवाइजर है, जो इनको भारत जोड़ो यात्रा में लेके जा रहे। देखिए डोने साहब, आपकी कांग्रेस की एक मैच्योर्ड लीडरशिप थी, आज भी वो लीडरशिप दबी हुई है। मैं जानता हूँ डोने साहब जैसे लीडर क्यों नहीं बोल पाते, क्योंकि उनको पता है शशि थरूर ने बोला, मनीष तिवारी ने बोला, उनको साइड में कर दिया। तो अगर And here I would like to कुछ भी- stop you. One कुछ second, भी- let me stop you. Bakri Saab, this is very strange. You see, up till now, Jairam Ramesh Saab and everybody else has been talking about the failure of Indian foreign policy, especially with regard to Russia. उनका रशिया जो है वो अपने जेट इंजन बेच रहा है पाकिस्तान को, ये जयराम रमेश साहब बोल रहे हैं, कांग्रेस के बाकी सब लोग भी बोल रहे हैं। अभी रशिया की ऑफिशियल स्टेटमेंट है ये, वी आर सेलिंग नो इंजन टू पाकिस्तान। पाकिस्तान को हम कोई इंजन नहीं भेज रहे भाई, हमारा इंडिया के साथ बहुत अच्छा रिलेशन है और आगे भी रहेगा। एंड इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री इक्विपमेंट वी आर नॉट सप्लाइंग एनी मिलिट्री इक्विपमेंट टू पाकिस्तान। आई डोंट नो व्हाई कांग्रेस पीपल हैव टू जंप द गन फॉर व्हाट। बागरे साहब ये क्या है, क्या जरूरत पड़ी थी बोलने की? पहले कंफर्म तो कर लेते यार। बागरे साहब, राजीव जी, कांग्रेस पार्टी इज इन द हैबिट ऑफ मेकिंग सम एलिगेशंस, दे वांट टू शूट एंड स्कूट। उनका एक ही एजेंडा है कि किसी भी तरीके से भारत सरकार को बदनाम कर दिया जाए। अगर ये भारत सरकार या मोदी जी को बदनाम करने के चक्कर में देश का भी नुकसान होता है तो कांग्रेस पार्टी को कभी फर्क नहीं पड़ता। उसके 2-3 एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इन्होंने बार बार एक ही बात पूछी कि आज भारत के कितने एयरक्राफ्ट गिरे। इन्होंने कभी नहीं पूछा कि कितने आतंकवादी ठिकानों पे हमला हुआ, कितने आतंकवादी मारे गए, कितने पाकिस्तान के एयरबेस डिस्ट्रॉय हुए, कितने पाकिस्तानी जहाज गिरे। तो ये चीज कांग्रेस पार्टी दर्शाती है। वो ट्रम्प साहब ने कुछ बोल दिया तो उसके पीछे साथ में हो गए, आज ट्रम्प कुछ दूसरी बात बोलता है। तो कांग्रेस पार्टी ने, मैं तो बार बार कहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी बिकॉज ऑफ द एडवाइजर्स लाइक मिस्टर जयराम रमेश इज अ कंफ्यूज पार्टी। आज इनका नाम बदल के कंफ्यूज पार्टी इसलिए कर देना चाहिए क्योंकि हर चीज में कंफ्यूजन है। पहले वो बोलते रशिया से आपने संबंध खराब किए, जब रशिया हमारे साथ फुल खड़ा होता है तो ये बोलते कि अरे ट्रम्प ऐसा बोल रहा है। देखिए, फॉरेन पॉलिसी इज नॉट समथिंग विच इज टू बी चेंज डेली, इट्स अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस। मोदी साहब जैसा मैच्योर्ड लीडर, ही हैज नॉट रिएक्टेड टू मिस्टर ट्रम्प्स एनीथिंग। आज आप देखिए कांग्रेस पार्टी ने बार बार ट्रम्प के बयानों पर रिएक्ट किया है। जयराम रमेश तो उसका काउंट रखते हैं। आप अगर उनका वो एक्स का टाइमलाइन देखे तो उस पर आप, अरे उन्होंने 30 बार कहा है, भैया वो 50 बार 100 बार कहना हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। हम हमारे देश के लिए खड़े हैं, हमारे फौज पे हमको विश्वास है,
और कांग्रेस पार्टी अगर इस तरीके से कंफ्यूज राजनीति करेगी, आज मैं आपको बताता हूँ ये चाहते जेन जी रिवॉल्यूशन करे। अरे किस तरीके की बात है, डेमोक्रेसी छोड़ के ये चाहते कि लोग रास्ते पे आके वायलेंस करें। अरे जेन जी तो पूरी मोदी साहब के साथ है, आप पूरा सर्वे करा लीजिए। आज जो 2014 से बच्चे बड़े हुए हैं और आज जो वोटर्स है और जो उसके पहले भी वोटर्स थे वो पूरे मोदी साहब के साथ है, बिकॉज ही नोज जिस प्रोजेक्ट का हम भूमि पूजन करते हैं उसका इनॉग्रेशन भी हम करते हैं, चाहे वो देवेंद्र जी हो चाहे मोदी जी हो। नवी मुंबई एयरपोर्ट में इतना फास्ट काम किया, आज मेट्रो का इतने साल से अड़ा हुआ था। I have a problem with you, sir. देवेंद्र जी ने आज पूरा किया सर। But I have a problem with you, sir. I have a major problem. मेरी एक बहुत तकलीफ है आप लोगों को, especially the BJP. सर लद्दाख में एक शख्स है सोनम वांगचुक। आज की तारीख में आपका जो एक आईटी सेल है और बाकी सब लोग हैं वो उसी सोनम वांगचुक के खिलाफ न जाने क्या क्या बोल रहे हैं। सर मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं, आपको मालूम है लद्दाख में जो लेह की जो पॉपुलेशन है कोई 30,000 होगी, 40,000 होगी। आपको मालूम है उसमें जो यूथ है वो जो अर्ली 40,000 के करीब होंगे। डू यू नो अबाउट 20,000 ऑफ देम वर पार्ट ऑफ द लद्दाख स्काउट्स। इन लोगों ने चाइनीज को रोका, इन लोगों ने चाइना के खिलाफ हमेशा लड़ाई करी। दीज आर द एसेट्स टू आवर इंडियन आर्मी। सो इज द केस विद दिस मैन सोनम वांगचुक। ही इज अ फेवरेट ऑफ द इंडियन आर्मी बाय द वे। इंडियन आर्मी के लिए इन्होंने अलग अलग इग्लू बनाए, टेंट्स बनाए, ना जाने क्या कुछ बनाए। मेरा एक छोटा सा है सर आपसे, आज आपने सोनम वांगचुक को अरेस्ट कर लिया है, किसी तरह किसी दिन तो आप इसको छोड़ेंगे। सर जब आप इसको छोड़ेंगे इसका जो कद है वो 100 गुना ज्यादा बढ़ चुका होगा। Why are you alienating the entire population in Ladakh? Because the reason is there is a possibility that some of your local BJP leaders don't want him around because he said जो हिल काउंसिल है उसके अंदर करप्शन हुआ है। आप कृपा करके हिसाब दें कि हिल काउंसिल में क्या क्या किया है अभी तक, उनको लेकर के इनके खिलाफ अब आप बोल रहे हैं FCRA वायलेशन। हो सकता है होगी, मुझे मालूम नहीं है। अब बोल रहे हैं that he is a Chinese plant. Sir, this man led the entire anti-China movement in India. He said boycott Chinese goods. Why have we arrested him, sir? Please. देखिए राजीव जी, let me make it very clear to you. मिस्टर सोनम वांगचुक ने उनका स्टैंड जो था पहले, he wanted a union territory. He had made lot of agitations for creating the union territory. जब मोदी साहब ने यूनियन टेरिटरी क्रिएट कर दी तो उसके बाद उन्होंने उनको कॉन्ग्रेचुलेट भी किया। देखिए आज सोनम वांगचुक साहब ने पास्ट में क्या किया है सर ये इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये भी तो इम्पोर्टेंट है ना आज उनके स्टेटमेंट क्या है। आज उन्होंने वहां के युवकों को वायलेंस के लिए इंस्टिगेट किया। आज उन्होंने उनके स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड है कि अगर कल चाइनीज आएंगे तो हम उसको रास्ता दिखाएंगे देश में आने के लिए। और उन्होंने आज वहां के जो डीजीपी है उनका स्टेटमेंट है सर कि ही वेंट टू पाकिस्तान फॉर सम कॉन्फ्रेंस और he is in touch regularly with some Pakistani guy who is a ISI agent. So we cannot sir rest on his past laurels. और ये लद्दाख जो रीजन है इट इज अ बॉर्डर एरिया, वी कैनॉट टेक अ सिंगल रिस्क। हम कोई सोनम वांगचुक साहब को खुश करने के लिए यहाँ नहीं बैठे, हम देश की सुरक्षा करने के लिए बैठे। अगर सोनम वांगचुक ने कुछ गलत किया होगा, मैं तो आगे चल के बोलता हूँ कल अगर मैंने भी कुछ गलत किया तो भारतीय जनता पार्टी है या मोदी साहब है ये मेरे खिलाफ भी एक्शन लेंगे। मेरे पास एसोसिएशन से कोई नहीं है सर। आज सोनम वांगचुक ने आज वहां के युवकों को भड़का के वहां वायलेंस हुआ, 4 लोगों की मृत्यु हो गई। हु इज रिस्पांसिबल फॉर द डेथ्स ऑफ दोस पीपल? सर आई वुड रिक्वेस्ट यू टू टेक अ सेकंड लुक अगेन। आई एम रिक्वेस्टिंग एवरीबॉडी टू री-लुक at what has happened to Sonam Wangchuk and what is happening in Ladakh. I cannot say anything more. मैं ज्यादा बोल नहीं सकता सर, आपको मालूम है। मैं आप ही के पास आ रहा हूँ सर, आपका शो है, आपको जितना बोलना बोलिए, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूँ कि सर समटाइम्स वन हैज टू बी वेरी रैशनल एंड वेरी प्रैक्टिकल। वी हैव टू थिंक स्ट्रेटेजिकली। लद्दाख एंड द लद्दाखीज आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडियाज डिफेंस। दैट्स ऑल दैट आई एम सेइंग। सर अब आप बोलो सर। Sir, we love Ladakh people and unfortunately Mr. Sonam Wangchuk is not representing the Ladakh people. Let me make it very clear. सोनम वांगचुक साहब पूरे एक लद्दाख के कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। दूसरी बात ऐसी है सर, आप अगर आज उनकी लीगल टीम में आप देखेंगे कि हु इज कमिंग टू डिफेंड हिम, सो यू कैन मेक आउट हुज एजेंडा इज गोइंग टू ड्राइव। देखिए ये दीज आर सर, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सोनम वांगचुक साहब हमेशा से ऐसे होंगे या ऐसे थे या उनके ऊपर जो आरोप है वो पूरे सब सच है, लेकिन आज जो अपरेंट प्राइमा फेसी लग रहा है कि इंस्टिगेटेड अ मॉब,
he has given statements against the country. He is going back on his own words that union territory create hui, and when the talks were happening with the Hill Council, he instigated people. आज भारतीय जनता पार्टी का ऑफिस जला के आपको इंस्टिगेट करना क्या है? वहां कांग्रेस के भी काउंसिलर ने हिंसा पे किया है, तो ये क्या चाहते हैं कि बॉर्डर स्टेट में वायलेंस हो और वहां पर हम चाइना को भी मैसेज दे कि देयर इज Anyway, we know by No, October no, I'll tell you, Samir Bakr Sahab, what Rahul Gandhi has said that what is happening is crime against the constitution. संविधान के खिलाफ क्राइम हो रहा है. राहुल गांधी जी खड़गे साहब ने जॉइंट स्टेटमेंट में कहा, दे मेंशन लद्दाख सोनम वांगचुक के इंसिडेंट को मेंशन किया. दूसरे उत्तर प्रदेश में कहा कि उत्तर प्रदेश में दलित और माइनॉरिटीज, दलित अल्पसंख्यक आर नॉट सिक्योर, दोनों सिक्योर नहीं है. इट हैज बिकम अ हेल फॉर दलित्स एंड माइनॉरिटीज. तो ये तीन विषय जो है, इट इज गोइंग टू बी कंटिन्यूस हेडलाइंस बिकॉज कांग्रेस स्ट्रिक्टली बिलीव्स दैट बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइम है ये. एक सोनम वांगचुक के खिलाफ, दूसरा वो दलित है जिसको ड्रोन चोरी के 30 में मार डाला, उनका किल टू डेथ, मर्डर हो गया उनका. और तीसरा जो माइनॉरिटीज का दशा है, संभल से लेके पूरे उत्तर प्रदेश में हर जगह पर. तो दीज आर सम थिंग्स दैट यू हैव टू. एंड राहुल गांधी खड़गे साहब ने खुद रिटन साइन करके कहा कि क्राइम्स अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन. बाकरे साहब देखिए प्रदीप जी, राजीव जी, मैं आपको क्लियर कहना चाहता हूं कि कॉन्स्टिट्यूशन सबसे अपहोल्ड तो मोदी साहब कर रहे हैं. आप मुझे बताइए कि अगर कानून का राज नहीं रहता तो आज उत्तर प्रदेश में इतना इन्वेस्टमेंट आता था क्या? आज कानून का अगर राज नहीं रहता तो आज सोनम वांगचुक साहब को अगर कोई कानून के प्रावधान के तहत अरेस्ट किया तो हम तो ये नहीं बोल रहे ना, ही डजंट हैव अ राइट टू गो टू द कोर्ट. हम तो ही हैज अ राइट टू गो टू द कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंट्री. आज हियरिंग थी सर, तो सुप्रीम कोर्ट हैज लिस्टेड द केस फॉर अक्टूबर 14. जी बोलिए सर. मुझे राजीव जी एक ही पॉइंट कहना है कि वी अबाइड बाय द कोर्ट्स डिसीजन. लेकिन कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी, खड़गे साहब, ये जब कोई इनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है तो ये जज पे भी सवाल उठाते हैं. यानी देयर आर इंस्टेंसेस व्हेन द जजेस वर कैस्टिगेटेड बाय द अपोजिशन फॉर गिविंग सम डिसीजन. हमारे खिलाफ कुछ डिसीजन हुआ है, इलेक्शन कमीशन के खिलाफ हुआ है या इलेक्टोरल बॉन्ड्स में हुआ, तो हमने तो एक्सेप्ट करके सर उसका नोटिफिकेशन निकाला. हम तो नहीं गए कि भैया सुप्रीम कोर्ट बिका हुआ है, इलेक्शन कमीशन बिका. हम तो कर्नाटक में भी हारे जहां खड़गे साहब जहां से आते. तो देखिए, कांग्रेस पार्टी को संवैधानिक संस्थाओं पे बिल्कुल विश्वास नहीं है, इसलिए ये ऐसा टाइपा करते हैं. और दलितों पे अगर कोई भी केस हुआ है, मैं तो ऐसा मानता हूं सर, किसी भी ह्यूमन बींग के इंडिया के होना नहीं चाहिए. दलितों को तो विशेष हमने प्रोटेक्शन भी देना चाहिए. लेकिन अगर एक आइसोलेटेड केस होता है, उससे कोई पूरी कानून व्यवस्था राज्य की नहीं आकी जाती. राजस्थान में जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तो आप देखिए, आप निकाल के देखिए न्यूज आइटम, डेली दलितों पे अत्याचार होता था. ये मोदी साहब ही है जिन्होंने सबसे ज्यादा दलितों को न्याय दिया है, सबसे ज्यादा स्कीम्स उन्होंने लाई है. अगर हमको कुछ भेदभाव करना रहता तो हमने क्या रिलीजन के आधार पर या जात के आधार पर कोई स्कीम लाई है क्या? जब कांग्रेस पार्टी लाती है रिलीजन के आधार पर, चाहे तेलंगाना हो चाहे कर्नाटक हो, रिलीजन के आधार पर रिजर्वेशन दे रहे. तो हम तो चाहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास. हमारी कौन सी योजना में आपको दिखता है कि देयर इज अ पार्शियलिटी? Taking any one instance and blowing it out of proportion just to create sensationalization. Sir, I would like to ask you a question. It's a very important question, and I would like Dr. Dhoni to respond to that after that. Sir, क्या है कि the Prophet Muhammad birthday, may peace be upon him, उसके बाद, जिसको ईद उल मिलादुल नबी बोलते हैं, उसके बाद क्या हुआ? There was a movement which started somewhere, I think in Uttarakhand and then Himachal Pradesh, went to UP, it came to Maharashtra, and kind of stopped at Maharashtra. Maharashtra के आगे नहीं गई है, केरल में थी, but then Kerala is महाराष्ट्र में भी थी. बीड़ में तो योगी आदित्यनाथ को दफनाने की बात थी. जी. बोला तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ सर, ये आई लव मोहम्मद का जो ये मूवमेंट है, a lot of people are saying this is part of a toolkit playbook. Is that correct? कि किसी भी तरीके से दंगे फसाद करो, कुछ करो, कोई प्रॉब्लम करो. Do you agree with that? What do you think? बाकरे साहब. मेरे को पूछा सर? बाकरे साहब से आपसे पूछा, उसके बाद में जाऊंगा. राजीव जी, मैं तो मानता हूं कि ये एक आई लव मोहम्मद का जो मूवमेंट चला है, दैट इज टू ऑर्गेनाइज द मुस्लिम यंगस्टर्स एंड टू क्रिएट समथिंग व्हिच इज नॉट एज पर द लॉ एंड ऑर्डर ऑफ द एनी स्टेट. तो अगर आई लव मोहम्मद अगर उनको कहना है तो भाई आप सब जगह लगाइए, आपके दुकानों पे लगाइए, आपके रेस्टोरेंट्स पे लगाइए. जब योगी साहब ने या कोई किसी कलेक्टर ने ऑर्डर निकाला कि
कि आप अपने दुकान पे अपना नाम लगाइए, तो कांग्रेस पार्टी ने हल्ला किया था कि दिस इज सिलेक्टिव। ये तो आज आप ये आई लव मोहम्मद का क्यों लेके जाना? और ये आई लव मोहम्मद, चलिए मुस्लिम समाज को मोहम्मद साहब से प्यार करने में हमको कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अगर ये आई लव मोहम्मद के आड़ में अगर आप कोई कानून व्यवस्था बिगाड़ना चाहते हैं, जैसा बरेली में हुआ, आप क्यों करना चाहते हैं? यू वांट टू ऑर्गेनाइज इन सम वे और अदर और ट्राई टू डिस्टेबलाइज। अगर आपको आई लव मोहम्मद करना है, आपके घर पे स्टिकर लगाना, आप लगाइए, लेकिन आप जबरदस्ती रास्ते पे आके लोगों के गाड़ी पे लगा रहे, कानून अपने हाथ में ले रहे, पुलिस से झड़प कर रहे, तो कानून अपना काम करेगा। अगर कानून ने उसके बाद काम किया तो फिर इनके राहुल गांधी बोलते हैं कि भैया इन्होंने माइनॉरिटीज के खिलाफ एक्शन लिया। तो क्या हम ये अलाउ कर सकते हैं हमारे देश में कि कोई भी एक धर्म के लोग जाके कुछ भी हल्ला करने की कोशिश करेंगे? सर, दिस इज नॉट अलाउड, दिस इज नॉट एज पर कॉन्स्टिट्यूशन। In any event, Pradeep ji, one second. I want to ask Gazwa. I'll go. Dole sahab, ek You Gazwa. can go to it. One second, sir. One second. In any event, as I've been speaking again and again, डोने साहब आप भी जरा सुन लीजिए, उसके बाद प्रदीप जी सवाल पूछेंगे आपसे। ये आई लव मोहम्मद का जो बैनर है ना, बाय द वे इट इज एंटी इस्लामिक, ये भी आपको बता दूं। यू कैनॉट टेक द नेम ऑफ द प्रॉफिट जस्ट लाइक दिस। उसके साथ में आपको PBUS लगाना पड़ेगा, दैट इज पीस बी अपॉन हिम, या आपको लगाना पड़ेगा आई लव सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये लगाना पड़ेगा। ये जो आई लव मोहम्मद जो लिख रहे हैं ना सर, that itself is blasphemous. And Muslim leadership has to educate the people. Muslim leadership. It is sacrilege. You can't do it. By the way, it is un-Islamic. अब प्रदीप जी आप बोलिए प्लीज। गजवा, थोड़े साहब, अब गजवाए हिंद हो गए। गजवाए हिंद, योगी आदित्यनाथ जी को खुलेआम बोलना पड़ा कि इस देश में, इस देश की मिट्टी में गजवाए हिंद कभी हो नहीं सकता, और जो भी सपने देख रहे हैं उनको हम हेल के टिकट बुक करेंगे। तो किस प्रकार से देखते हो, कहाँ ये अपीसमेंट है, पोलराइजेशन है, क्या हो रहा है दोले साहब? सर, ये तो बात बिल्कुल सही है। आप एक बात देखिए, जब हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन होता है तो फायदा किसका होता है? फायदा तो भारतीय जनता पार्टी का होता है ना। तो ये जो चल रहा है आई लव मोहम्मद, ये इसके पीछे भी भारतीय जनता पार्टी है। वो कुछ बिकाऊ मुसलमान है, सुनिए सर, ऐसा नहीं है, कुछ मुसलमानों में बिकाऊ है, कुछ मौलाना भी बिकाऊ है, कुछ नेता भी बिकाऊ है। उनको भारतीय जनता पार्टी के लोग पकड़ते हैं और उनको बोल देते हैं इस तरह से करना है, और फिर धर्म के नाम पे, पैगंबर साहब के नाम से तो कोई भी किसको भी भड़काया जा सकता है, वो भड़क जाते हैं। बस कोई बोलने वाला कौन है? कोई कांग्रेस के नेता है या कोई बड़ा मौलाना है? देखिए, मुस्लिम समाज के मौलाना ने भी बोला है, वो सज्जाद नोमानी साहब ने बोला है, और ओवैसी साहब ने भी बोला है कि भाई आप क्या मोहम्मद साहब का नाम लेते हैं, आप गुटखा खाते हैं, आप बुरे काम करते हैं और मोहम्मद साहब का नाम लेते हैं। तो ये हकीकत इसके पीछे ये है कि ये सब पोलराइजेशन करने के लिए हो रहा, और जिसका फायदा होने वाला है वो भारतीय जनता पार्टी इसके पीछे है, ब्रेन भारतीय जनता पार्टी के। दोनों साहब, दूसरा आरएसएस का सर हाँ। ये जो लोग कर रहे हैं इस तरह से, जो आई लव मोहम्मद के नाम से जुलूस निकालना, ये इन पे कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरा है कि कांग्रेस ने हमेशा आरएसएस का आलोचना किया। अभी उन्होंने कहा कि आप षड्यंत्र रचा रहे हो आरएसएस, राहुल गांधी जी को फिजिकली एलिमिनेट करने के लिए। राहुल गांधी जी बार बार सावरकर, मगर दनिश कनेरिया एक क्रिकेट प्लेयर है पाकिस्तान में, एक ही हिंदू प्लेयर है पूरे पाकिस्तान टीम में था, वो अभी रिटायर, वो इंडिया ज्वाइन करना, सिटीजनशिप के लिए अप्लाई किया। बोले आरएसएस जैसे संगठन पूरे विश्व में नहीं है, पूरे वर्ल्ड में आरएसएस जैसे संगठन नहीं मिलेगा जिसमें कोई कास्ट नहीं है, कोई रिलीजन नहीं है, कोई प्रकार से धर्म ने भेदभाव नहीं है। दिनेश कनेरिया जो पाकिस्तानी है, उन्होंने कहा कि आरएसएस जैसे संगठन को सराहना चाहिए, ये पूरे विश्व में ऐसे संगठन नहीं। खिलाड़ी है सर, उसका पूरा टाइम खेलने में जाता है, उसको कोई पढ़ाई नहीं, आरएसएस के बारे में उसने कुछ पढ़ाई नहीं की है, सिर्फ ऊपर ऊपर से बोलता है। उसके पास क्या है, उसके पास पढ़ने के लिए कहाँ टाइम है? खिलाड़ी है, खेलते रहता है वो, उसको मालूम नहीं। हमको पूछिए आरएसएस क्या है? आरएसएस के लोग गोडसे का विरोध करते हैं क्या? बोलते हैं कि गोडसे खराब था। इनका इतिहास बहुत खराब है सर, इनका इतिहास इतना है सर। अटल जी ने खुद बोला, शर्म आनी चाहिए। राजीव जी बोलिए सर, बागरे साहब बोलिए। देखिए, डॉक्टर डोने साहब को मैं क्लियरली कहना चाहता हूँ, आप अटल बिहारी जी का भाषण सुनिए जो उन्होंने संसद के पटल पे दिया है। उन्होंने कहा है कि गोडसे आरएसएस की निंदा करता था, गोडसे आरएसएस के खिलाफ लिखता था। 2 बार आपने आरएसएस को बैन करके बाद उसके बाद 2 कमीशन बिठाए गए, उसमें आरएसएस का कुछ भी संबंध नहीं है।
और गोडसे से हमको जोड़ना है ना, आपकी एक विफलता है। आपके राज में गांधी जी की हत्या हुई थी, तो आपकी सरकार क्या कर रही थी उस वक्त? जवाहरलाल नेहरू जो है वो क्या कर रहे थे? आपके सरकार में इंदिरा जी की हत्या हुई, आप क्या कर रहे थे? आप किस आइडियोलॉजी की बात कर रहे हैं? आपने एक गोडसे का एक भूत खड़ा किया है जिसके कारण बीजेपी को आप ये कर रहे हैं, लेकिन हमारी आइडियोलॉजी क्लियर है। संघ में पहले दिन से आज 100 साल हो गए, ना कभी जात पात देखते ना कुछ देखते। गांधी हत्या के बाद आपने पूरे महाराष्ट्र में ब्राह्मणों का नरसार किया। 1984 में आपने राजीव गांधी की हत्या के बाद आपने पूरा इंदिरा गांधी जी की हत्या, इंदिरा जी की हत्या के बाद आपने सिखों का नरसार किया। तो आप किस तरीके की राजनीति करते हैं? और संघ के बारे में आपको बोलने में आपको आइडियोलॉजी संघ की 0.001% भी नहीं समझ सकते, बिकॉज यू आर वेडेड टू वन फैमिली, यू आर वेडेड टू वन डायनेस्टी, यू हैव डिवाइडेड द कंट्री वंस, यू आर डिवाइडिंग द कंट्री डेली, एंड आप जात पात और रिलीजन में देश को बांटना चाहते हैं। हम तो अखंड भारत की बात करते हैं, हम तो चाहते हैं कि भारत वापस अखंड हो। हम ग्लोरियस सिविलाइजेशन की बात करते हैं, आप अंग्रेजों की बात करते हैं, आप मुगलों की बात करते हैं। आज आपके मनमोहन सिंह और राहुल गांधी जी औरंगजेब के कबर पे गए थे, तो ये बात तो कुछ समझ में नहीं आती ना। तो कैसा है ढोने जी, आप अगर अभी भी आप देख लीजिए, अगर आपने कोर्स करेक्शन नहीं किया तो डेफिनेटली आपके प्रॉब्लम्स होने वाले हैं। सर ऐसा है जी, आरएसएस ये बोलते जात नहीं देखते, आरएसएस जाति देखती है। इनके जितने भी सरसंघ चालक हुए, रज्जू भैया छोड़ के सब ब्राह्मण है। तो क्यों इतने सालों में 100 साल में आपको ये गैर ब्राह्मण सिर्फ एक ही आदमी मिला? तो गांधी परिवार तो ओपनली बोलता है कि अरे गांधी परिवार का छोड़ दीजिए, गांधी परिवार के अरे छोड़ के कई 60 साल से तो कांग्रेस आपने के। ब्राह्मणों की पार्टी ला के रखी है देश के ऊपर। हाँ? आप जवाहरलाल नेहरू से लेके काश्मीरी ब्राह्मण थे वो, तो आप उनको क्यों नहीं हटाते? आप क्यों नहीं एक मुसलमान को हटाया अपने हमने। पार्टी का अध्यक्ष करते? अब क्यों नहीं एक हमारा मुसलमान को अध्यक्ष आप? कौन है? अरे हमारा आप अध्यक्ष दलित देखिए, है। देखिए राहुल गांधी को हमारा हटाइए अध्यक्ष ना। दलित है साहब, अगर इसके पहले आपको सीताराम केसरी ब्राह्मणों थे। के खिलाफ इतना द्वेष है तो आप नहीं हटाइए नहीं, राहुल गांधी ब्राह्मणों को। के खिलाफ देश नहीं भैया, अरे हमारे आप तो रिश्तेदार जात है पात की बात ब्राह्मण। करते ना, आप जात पात सर, की बात करते डॉक्टर डोने साहब। आप हमारे जैसा रिश्तेदार पढ़ा है लिखा इंसान ब्राह्मण। भी जात पे बात करता है। मुझे बहुत हमारे रिश्तेदार है। आश्चर्य लगता है कि नहीं, डॉक्टर नहीं, डोने नहीं, जैसे सर। एक नहीं 10 ब्राह्मण हमारे रिश्तेदार है सर, छोड़ दीजिए। ऐसा हम कोई भेदभाव नहीं करते। हमारे मार्गदर्शक भी ब्राह्मण है सर, हमारे लेकिन सर, एक रिश्तेदार चीज तो ब्राह्मण है, और है। क्या बोलना आपको? अरे डॉक्टर ढोने, एक चीज तो है, वो तो आप मानेंगे। जैसे आदरणीय सम्मानीय जयराम रमेश साहब जो है, वो आज की तारीख में मणिशंकर अय्यर का रोल प्ले कर रहे हैं। वो क्या है कि हर पिक्चर में जॉनी लीवर होता है ना सर, कोई कॉमिक होता है सर, तो पहले आपका मणिशंकर अय्यर साहब हुआ करते थे, आज जयराम रमेश साहब हैं। तो सर क्या ये आप समझते क्यों नहीं? बीजेपी के लोग हैं सर ये। जयराम रमेश यूज्ड टू वर्क विद सैम पिट्रोडा साहब, उनके असिस्टेंट हुआ करते थे सर। जब तक आप जयराम रमेश साहब को ये नहीं बोलेंगे भैया तू वापस टेलीकॉम इंडस्ट्री में जा यार, यहाँ पर क्या कर रहे हो तुम, सर आपकी हालत ठीक नहीं होने वाली। वो राहुल गांधी जी को जान करके मिसगाइड करते हैं। राहुल गांधी जी ने जो अभी बिहार के अंदर जो एक आंदोलन शुरू किया, बहुत अच्छा किया, मतलब वेदर देयर इज ट्रूथ इन इट और नॉट दैट्स अ सेपरेट इशू, लेकिन उनको जबरदस्त लोगों की सराहना मिली, लोग पहुंचे वहां पे। अब उसको डिरेल करने के लिए जयराम रमेश बैठे हैं वहां पे। अगर आपको नहीं दिख रहा, एक जमाने में समीर भाकरे साहब जिस पार्टी से हैं, उनके खास एक आदमी हुआ करते थे गुजरात में, जिनको आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं और बहुत प्यार करते हैं, उनका नाम था अहमद पटेल। वैसे ही जयराम रमेश साहब हैं। तो आप लोग ये समझते क्यों नहीं है? मुझे समझ में नहीं आ रहा सर, क्या हो रहा है कांग्रेस को। वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग सर, द कांग्रेस अगर देखा जाए तो आप 1885 में आप लोगों का जन्म हुआ, तब से लेकर के आज तक आप 140 साल के हो गए हैं, 140 इयर्स सर। अभी तक आपको समझ में नहीं आई कि क्या हो रहा है। आज जिस प्रकार से बजाज साहब बोल रहा है, आज मनीष तिवारी भी बोलने लगे। सर चिदम्बरम हमारे पार्टी में भी है ना आरएसएस के लोग है ना सर। चिदम्बरम ने राहुल गांधी जी ने भी बोला, गुजरात में बोला है कि हमारे बीच में भी है कुछ लोग सर पहले भी होते आरएसएस थे, के गोलवाल लोग। ये करती जो थे। लेखक है ना सर, जितने सर भी अभी ये जो गोलवालकर भारतीय खुद थे जनता कांग्रेस में, गुरुजी भारतीय खुद थे। जनता पार्टी सर गुरु गोलवालकर खुद हुआ करते थे कांग्रेस में, ऐसी क्या बात है। हेड एक के बाद जमाने भी थे। में कांग्रेस बिल्कुल गंगा की तरह थी, सब लोग थे कांग्रेस में, ऐसी क्या बात है, उसमें क्या है? नहीं, अभी 8-10 साल पहले अभी तक भी कांग्रेस में है कुछ आरएसएस के लोग, भाजपा के लोग। ये तो सही बात है, राहुल गांधी जी ने बोला ये बात कि अपने पीछे भी कुछ लोग है ना ऐसे लोग। और ये जो जितने लेखक हुए ना सर, लेखक इतिहासकार, ये जो कांग्रेस के सरकार में भी थे तो सब ये आरएसएस के लोग थे, इन्होंने पूरा गलत इतिहास पढ़ाया।
मगर अगर वो सही इतिहास नहीं। पढ़ाते आज थे। दोने साहब, आज मनीष तिवारी जी ने भी चिदम्बरम को कहा कि चिदम्बरम ने सही बोला, 26/11 का रिटेलिएशन यूएस के कहने पे हमने नहीं किया। नहीं, वो जी होम चिदम्बरम मिनिस्टर सर, थे। चिदम्बरम पे ईडी की तलवार लटकी हुई है और मनीष तिवारी पे भी कुछ ऐसे है। ये ईडी के चक्कर में सब ये बोल रहे हैं सर, बाकी कुछ नहीं। बाकर साहब, ये आप एक जनसत्ता में आई थी सर 2019 में, सुनिए 2019 में था चिदम्बरम, शरद पवार पे भी लटके, चिदम्बरम पे लटकी है ईडी की तलवार। उसके बाद शरद पवार पे आया था, तो चिदम्बरम जो है ना, चिदम्बरम पे ईडी की तलवार लटकी हुई है। वो कुछ भी बोलते बट वो हैं। होम मिनिस्टर था। मनीष तिवारी का ठीक कहना है ना, कि वो रहे होंगे, कांग्रेस के नेता रहे होंगे, मनीष तिवारी भी, उस पे भी ईडी पे तलवार होंगी सर। ये ईडी के चक्कर में बोल रहे बड़े लेकिन बड़े before लोग। we end, I अशोक would राज like चौहान to- जैसा नेता, सर मेरे बहुत करीबी संबंध है अशोक राज जी, चौहान मालूम। साहब के, लेकिन वो भी गए। हमको तो बहुत दुख हुआ, क्योंकि अशोक राज चौहान आप भी जा रहे हैं? वो- हाँ? आप भी जाने वाले हैं, दिख रहा है। नहीं, मैं नहीं जाने वाला हूँ, चलिए सर। उस दिन मैंने बोला जनवरी सर, 2026 के पहले आप बीजेपी में होंगे, देख लेना। सर जी। जिस दिन मैंने बोल रहा है कि जिस दिन मेरे पास बहुत पैसा आएंगे, मैं करप्शन करूंगा, जब मेरा कुछ नाम आ सकता, तो मैं बीजेपी में जाऊंगा उस वक्त। जब वो तक भी मैं होने वाला। ईमानदार हूँ तब तक मैं बीजेपी में नहीं वो भी जाऊंगा। होने वाला है सर। अभी आपके 12 और मेडिकल कॉलेज बनने वाले हैं, बहुत बड़े आदमी बनने वाले हैं आप। Let me go across to Sameer Bhakre साहब। Sameer Sir, Bhakre last sir. word. I have to come to you. I have a question and then you can tell me whatever you want. Sir, this is a question which I ask every BJP man that I speak to, every minister that I speak to. यार, आप लोग असली इन्वेस्टिगेशन कब करोगे? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। असली इन्वेस्टिगेशन कब करोगे सर? सर, पंजाब के ऑपरेशन ब्लू स्टार के पहले क्या कुछ हुआ? एक आदमी आपके सामने बैठा है, मैं। I was the man who revealed, exposed what really took place before Operation Blue Star. I was in Surya at that time. Dr. J.K. Jain भारतीय जनता पार्टी के हुआ करते थे, आरएसएस के थे, नानाजी देशमुख के साथ हुआ करते थे। उनकी मैगजीन थी, उन्होंने खरीद ली थी मेनका गांधी से। I was the man who exposed the entire nexus between our intelligence services and Sant Jarnail Singh Ji Pindramale. How arms were supplied to him by our own armed forces, how people were told not to touch him, not to touch his killers, and the entire problem was allowed to go up to a certain height and then army was sent in. And the army was not even supplied with proper intelligence by them. सर, एक पूरी अच्छी तरह इन्वेस्टिगेशन कीजिए ना इसके ऊपर। और दूसरी, एक गुजराल साहब होते थे हमारे प्राइम मिनिस्टर, आई.के. गुजराल साहब, बहुत बड़े आदमी थे। आपको मालूम है जो पूरा हमारा RNAW का नेटवर्क था पाकिस्तान में, वो पूरा खत्म किसने किया? आदरणीय सम्माननीय इंद्र कुमार गुजराल साहब, बहुत बड़े आदमी हैं सर। लेट मी टेल यू वेरी फ्रैंकली सर, इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कराइए। लेट द ट्रूथ कम आउट टू द एंटायर नेशन कि अभी तक क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, किस किस को कहाँ कहाँ प्रोटेक्शन दी गई। सर, मैं जितने भी देशभक्त लोग हैं आपको दुआएं देंगे सर, इंक्लूडिंग इन द कांग्रेस, including within the Congress and everywhere else. Though what they have done to the country, sir, is, I think, the most horrible thing that anybody could ever do. सर, हम लोग सिर्फ जयचंद और मीर जाफर की बात करते हैं, ये जयचंद और मीर जाफर से 10 गुना आगे लोग हैं। अब आप बोलें सर, भाकरे साहब, प्लीज गो अहेड। नहीं, मैं पहले डॉक्टर ढोने साहब को सुन रहा था, तो आपके चैनल पे एक ब्रेकिंग न्यूज होनी चाहिए कि डॉक्टर ढोने साहब ने जयराम रमेश जी, चिदम्बरम जी और मनीष तिवारी जी को डिसोन कर दिया है। जी, वो हमेशा ही करते हैं, शुरू से करते हैं, हमेशा ही करते हैं। बचा कौन है फिर? सर, हमारे नेता ने, राहुल गांधी ने बताया कि अपने बीच कुछ भाजपा के लोग छुपे हुए हैं, नहीं तो आप उनको openly ढूंढिए। बोल रहे हैं। राहुल गांधी ने गुजरात में कहा है, तो मुझे कोई डर नहीं है। जी, बोलिए नहीं, तो बोलिए। आप अपन इतने बड़े लीडर्स पे आप बोल रहे हैं, तो इट शुड बी अ ब्रेकिंग न्यूज ऑन योर चैनल सर। Yes, तो मैं sir. बोलूंगा चिदम्बरम जी। चिदम्बरम जी, जयराम रमेश और मनीष तिवारी तीनों पे। नहीं, जयराम रमेश पे नहीं बोला मैंने, मनीष तिवारी पे बोला है। और अहमद पटेल। मनीष And तिवारी अहमद और पटेल। चिदम्बरम। जी जी, बोलिए बोलिए। मगर बचा सर, ये कांग्रेस बचा के कौन जो है दोनों बेकार साहब? नेता है ना, उनकी वजह से कांग्रेस की स्थिति है। जनता कांग्रेस के साथ में है। ये जो कुछ लोग हैं, बेकार लोग, जो कुछ भी बोलते हैं और पूरा पोलराइजेशन कर देते हैं, इसकी वजह से कांग्रेस की हालत हुई है। बस दोनों साहब, बचा कौन है? सब पे ईडी है, सब पे लड़का हुआ तलवार है, कोई इधर है, कोई उधर है। बचा कौन है दोनों साहब? एक लगता है आप जैसे क्लीन आदमी एक ही। बहुत लोग हैं सर, बहुत लोग। राहुल गांधी है, प्रियंका गांधी है, सोनिया गांधी है सर, इन पे कुछ कार्रवाई नहीं कर सकती। बहुत ढूंढा इन्होंने, कुछ उनके खिलाफ मिलता क्या? वो Right. बेदाग लोग हैं। और मैंने देखा है राहुल गांधी के जो करीबी लोग हैं ना सर, उन्होंने बताया कि जिस दिन राहुल गांधी को मालूम पड़ेगा कि हम पैसा कमा रहे हैं, कुछ पैसे कमाने के चक्कर में है, राहुल गांधी हमको दूर कर लेंगे। वो ऐसे लोग हैं, बेचारों के पास पैसे भी नहीं रहते, हमने देखा है, करीबी लोग हैं वो। Right, इतना all डर the है very राहुल best, गांधी sir. का। Thank you very much. And I can see that the Congress is preparing for the BMC elections, in spite of all the infighting. अंदर जो आपकी
आपका आपका द्वंद्व जो चलता रहता है, इंटरनल दंगल जो कांग्रेस का चलता रहता है, कभी कभी तो ऐसा लगता है कि 10-10 पार्टियां एक दूसरे के साथ लड़ रही हैं। कांग्रेस में एक पार्टी नहीं है, 10-10 पार्टियां होती हैं हमेशा, विच इज नॉर्मल, बट ऑल द सेम, all the very best to you. Sameer Bagre साहब, congratulations once again. Economy is Thank you, doing thank you. really and truly very well. Fantastic work. And this time, in spite of the RBI saying a 6.8% growth होगी, GDP की annual growth, I think it will go beyond 7.8%. That's what because of the GST reforms. yes. सर ये जीएसटी और ये ग्रोथ वगैरह इससे भी ज्यादा हटके देखिए गरीबों के पास क्या जा रहा, गरीबों की हालत क्या है, देश यानी क्या सर, रहता है इस देश की जनता, अगर जरा वो GDP देखिए नहीं सर। बढ़ेगा, अगर जीडीपी नहीं बढ़ेगा तो गरीबों के पास कुछ जाएगा ही नहीं सर, ये हो जाएगा। we've got BNK back. I thought you had gone. Welcome back, BNK. Right, gentlemen, but thank you very much. And BNK, one final word to you. Do you expect Mr. Adani to be able to control those open meat shops, open air meat shops? BNK? एक्चुअली उनकी तरफ से भी तो एक सब कमिटी की अपॉइंट की गई थी, इनफैक्ट दे ऑलरेडी अपॉइंटेड वन एक्सटर्नल एजेंसी टू मॉनिटर। Wonderful. मॉनिटर वगैरह ठीक है, लेकिन एक्चुअल एग्जीक्यूशन जो है ना, दैट इज द लोकल अथॉरिटीज इशू, द लोकल गवर्नेंस इशू। I don't think anybody will cross Mr. और Adani. बीएन कुमार जी, सहार अपने मुंबई एयरपोर्ट्स तो इतने कंजेस्टेड है, दोनों जगह आपको कितने हर होटल slum- मिलेंगे, कितने खुले दुकान मिलेंगे, आधे किलोमीटर के दूर है। 3 किलोमीटर जाने की जरूरत नहीं है, मुंबई एयरपोर्ट के बगल में ही, रनवे के बगल में सब चलता है, and still I mean they have been able to manage it. Right, thank you gentlemen, thank you very much. Thank Great you. pleasure as always talking to all of you. BN Kumar, Dr. Dhone and Sameer Bagre sahab, namaskar. Thank you very Thank you much. so much. Thank Jai you. Hind, Jai Hind to everybody. Thank you. So where had BNK gone? And then he came We'll have back. to ask him later on. We'll have to ask him what happened. In any event, Disappearing act, disappear and then come back. yes, maybe something may have gone wrong with his network or something. I don't know. But in any event, that's it. That's all we've got for you. And tomorrow, of course, is a very big day for Mumbai and for Navi Mumbai. The Prime Minister is here and he's going to be inaugurating 2 huge infrastructure projects. And of course, I think he'll be lecturing at the FinTech conference, which is going on right next door to us at the Geo Center. Let's see what he has to say. So that's just about it. So good days ahead as far as India is concerned. और एक और चीज आपको बता दूं, प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्लियर कट बोल दिया है आर्म फोर्सेस को, भारत की सेना को, सिर्फ इंडियन आर्मी को ही नहीं, एयरफोर्स को भी और नेवी को भी। इफ पाकिस्तान डज एनीथिंग स्टूपिड, यू हैव माय फुल सपोर्ट, कमिटमेंट एंड परमिशन. Do whatever the hell you have to defend yourself and teach them a lesson. That's it. And I think you need a prime minister like Fantastic. that, which is Well, fantastic. Leadership, it shows it. And the way the Army Chief and Air Force Chief and the Naval Chief are responding is also equally great. Nice to hear. They seems to be totally motivated, morale is absolutely high, and they really can do what they talk. Right, that's it. That's all we've got for you in tonight's show. अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें. Please do subscribe to the channel. The fastest growing channel of the nation now. Subscribe to that icon out there. Subscribe to that bell icon, वो जो घंटी है ना उसके ऊपर जरा क्लिक कर लें, so that you can get updates as they happen. Right, that's it from both Pradeep ji and myself and the entire Nation Now team. आप सब लोगों को नमस्कार. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम. Vande Mataram. भारत माता की जय. जय हिंद. Jai Hind.